Good afternoon, all the members. I, C. Akash Barbuti, Regional Council Member from CIRC, welcomes you all in this VCM on enhancing audit and financial reporting quality and Schedule Third changes. Today we have very own CA Sunil Sharma from Jaipur, who is also working with the BSR and Company LLP, and we are fortunate enough because he has been heading the audit division from last 9 to 10 years, and he's been very well versed in related to corporate audit. So I heartily welcome CA Sunil Sharma, and also give my thanks for accepting our invitation from CIRC. एंड टुडे जैसे कि वी ऑल नो कि हमारे चेयरमैन साहब आरआरसी गए थे, एंड ही इज शायद पूरे आरआरसी वो पूरी टीम जो है वो कल ही वापस आई है, सो इज नॉट वेल, सो वो थोड़ा सा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अपने को. एंड नाउ आई आस्क द स्पीकर ऑफ टुडे सेशन, सुनील शर्मा, सीए सुनील शर्मा, फॉर हिज डेलिब्रेशन. सुनील जी, ओवर टू यू. Thank you, Akash. Thanks a lot. Thanks for the nice introduction, and thanks for providing this opportunity. Uh, 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 First of all, I would like to say a very good afternoon, warm good afternoon to all of you. And today's session, I think, I don't know, आप लोग कैसे इसको लोगे, but for me, it's a significant change. Significant change means in terms of the reporting, right? And especially for the companies, because ये companies पे applicable है, be it CARO 2022 and Schedule 3. And इसका relevance के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करूँगा. Here the aim is, not to show you the slide या clause by clause या reading वगैरह, वो सारा aim नहीं है. My aim is to discuss with you, to deliberate, and to share my experience, recent experience on reporting on all these matters, practical difficulties which I faced during my audit of recent listed clients which I did. क्या challenges आते हैं, and not only for the big clients, आप लोग भी जो clients करते हैं, वहाँ पे क्या challenges रह सकते हैं, how you guys need to deal with those challenges, considering जो ownership जो है अब वो हम लोगों पे CA fraternity पे we have seen many recent incidents. I would not like to discuss those, but recent incidents जहाँ पे हम लोगों को भी मतलब though we are not the party, बट हम लोगों को भी इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि भाई अगर कोई गलती हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, तो यू आर ऑल्सो द पार्टी टू दैट पर्टिकुलर फॉल्ट एंड ऑल. So in this scenarios, I think it is very important that we will deliberate this properly, due care, we will take due care while reporting, and ensure that हमने हमारी duties properly करी है, right? And so that कि कभी कोई issue हो. See, the inherent limitation of the auditor is that the auditor can't detect each and every fraud, right? अगर इंटेंशन किसी का गलत है तो है, auditor can't detect, right? And it is very much there in our literature, be it standard of auditing or any other thing through which our audit is governed, जो सारी हम बोल सकते हैं कि हमारे audit के बाइबल है. But at the same time, what standard require us is to ensure that हम हमारा काम properly करें, proper skepticism के साथ करें. This is what the right word, skepticism. What is required by the various guidance, standard of auditing, or other guidance notes, just like CARO 2020, which the institute issued. It was there also previously for us while CARO. तो that is the most important critical thing जो हम लोगों को ध्यान रखती है. So how I will construct this, so how I have constructed this session is we will discuss about the CARO in detail, and there are many common similarity between the CARO and Schedule 3. So we will discuss in detail CARO 2020, and largely most of the part of Schedule 3 will also be get covered in that. And we'll discuss little
about the auditor reports changes. There are 2-3 clauses changes which have correlation with these CARO Schedule 3, and we'll discuss about relevance, why they are relevant, what we need to ensure while reporting, while doing audit on these matters, और उसको हमें किस तरह से ध्यान में रखना है. एंड लास्ट, जो भी आपके क्वेरी कंसर्न हो या आपने कोई प्रैक्टिकल मैटर डील करा हो विच यू गाइस वुड लाइक टू डिस्कस यहाँ पे इस फोरम पे, हैप्पी टू डिस्कस दोस टू. या सो we'll start with the session. First is related to CARO 2020. Quickly, I hope my slide is visible to you all. Can someone confirm the same? Okay, that's Yeah, it is visible. Thanks, Akash. So, as you all are aware, erstwhile CARO reporting is CARO 2016. Now it is CARO 2020. First, it was made applicable from 1st April 2020, right? Then it got deferred by 1 year because there were very many presentations went from company side. There were many challenges at that time. It was COVID year too, so it got deferred by 1 year. And during that 1 year, similar changes came in the Schedule 3, which was sort of a must, right? Because it is not only auditor who need to ensure. It's the company which need to ensure that compliance are there, reporting is done, right? So that is the theme. I would like to discuss about the second point. If you guys remember, CARO 2015, there is a reporting requirement of CARO reporting on consolidated financial statement, right? Then CARO 2016 को replace कर दिया गया 15 से, जहाँ पे CARO reporting on consolidated financial statement was done with, वो हटा दिया गया. Now CARO 2020 वापस उस चीज को लेके आया है in a refined form, right? So अगर आप लोगों को ध्यान हो, 2015 में रिपीटेशन ज्यादा होती थी, right? जो मेन एंटिटी के क्लॉज थे वही, सॉरी, जो होल्डिंग कंपनी के मैं बोलूँ, पेरेंट कंपनी के क्लॉज में बोलूँ, वही रिपीटेशन होते थे. एंड सब्सिडरीज रिलेटेड जो सब्सिडरीज के क्लॉज एंड ऑल वो सब है, वो वहां पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होते थे. इफ आई विल गो बाय द गाइडेंस जो CARO 2015 का है, नाउ उसको ध्यान में रखते हुए, इसको रिफ्रेश करते हुए जो अब इंट्रोड्यूस करा है, वो इस तरह से करा है कि अगर आपकी सब्सिडरीज में CARO में कुछ रिपोर्टिंग है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, विच यू थिंक it is equally important in the consolidated financial statement, so that we guys need to bring in our CARO report for consolidated financial statement. Just to quote an example, say for example, मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पॉइंट, वेरी बेसिक पॉइंट, कि भैया फिक्स एसेट रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करा सब्सिडरी ने, राइट? सब्सिडरी ने मेंटेन नहीं करा, then in that case, those caveat, those points, those reporting point, you guys need to bring in CARO report for consolidated financial statement, right? Because the consolidated financial statement का जो भी user होगा वो देख सके, right? This is the purpose. So while every company, right, every company including subsidiary, parent company have their own CARO report that is applicable, but console में भी वो चीज bring out करनी पड़ेगी. If you'll see CARO report of many listed company, if I will name few like TCS, Infosys, because they are the leader who used to publish their annual reports and financial statement, बहुत जल्दी publish कर देते हैं. There you will see if there is any adverse thing, or you can say any comment in CARO, it was reported there. If it is not there, then you can see that CARO report on the consolidated financial statement is just 1 or 2 liner. Yeah, so that is the major changes. Yes. Third point, if I'll discuss about, a lot of changes are done. Almost 21 clauses are there. Sub clauses भी introduce करे हैं उसमें. Then, well, एक चीज जो हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, या unintentionally हम लोग जो भूल जाते हैं, वो ये है कि CARO रिपोर्ट में अगर हमने कुछ रिपोर्ट करा है तो उसका implication हमारी मेन ऑडिट रिपोर्ट पे क्या रहेगा. And apart from that, one important thing is internal financial control वाली रिपोर्ट पे क्या रहेगा. So I know that how we deal with the internal financial control reports, but trust me guys, this is going to be very important,
in near future, right? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे हैं कंपनी के? देखिए एप्लीकेबिलिटी, इफ यू गाइस, मैं अगर आप लोगों को रिफ्रेश करूं, एप्लीकेबिलिटी आईएफसी की है कि अगर 50 करोड़ से टर्नओवर ऊपर है या 25 करोड़ से बोरोइंग एनी गिवन डेट ड्यूरिंग द ईयर अगर है तो आईएफसी एप्लीकेबल होगा। तो अ डिसेंट साइज ऑफ कंपनी इज, इट्स नॉट लाइक सो प्रीवियसली गवर्नमेंट वाज लाइक आईएफसी सब पे एप्लीकेबल होगा, देन दे कम इन अ रिफाइंड फॉर्म की नहीं, आईएफसी ये जो साइज की कंपनी है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, राइट? तो अगर मैं बात करूं कि 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या बोरोइंग, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 25 करोड़ से ऊपर है, उस पे एप्लीकेबल है, then I think you guys need to focus on internal financial control, internal financial reporting also. And coming back to our topic कि अगर कारो 2020 में कोई केविएट है, कोई रिपोर्टिंग क्लॉज है, तो आपको एट द सेम टाइम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे भी वो असेस करना चाहिए, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन करनी चाहिए, और कुछ ज्यादा सीवियर है तो आपको उसका देखना भी कर पड़ेगा कि आपको मॉडिफाइड इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट देनी है या क्या देनी है, राइट? I will share at the end of the session. I will share these slides with management committee. They will distribute this with you guys. No issue in that. And here you will find the link of the guidance note too. Institute की भी site पे भी है, so it's not an issue. This next slide I will quickly skip because there is no change as compared to Caro 2016. This talks about the applicability of the Caro. So in simple term, banking, insurance company, then charitable companies की मैं बात करूँ, 1% small company, सब पे Caro applicable नहीं होता है. Then a private company जो जिसका मैं बात करूँ कि भाई जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है या जिसका बोरिंग 1 करोड़ से कम है या टर्नओवर जिसका 10 करोड़ से कम है, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है. So there is no change as compared to Caro 2016. Now we will do clause by clause analysis, and before clause by clause analysis, I would like to discuss about the theme of the changes. Is anyone थिंक अबाउट, और आप लोगों में से किसी ने भी देखा हो कि ये चेंजेस क्यों लाए गवर्नमेंट, एमसीए, व्हाटएवर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये चेंजेस की जरूरत क्या थी, क्या रीजन था, या इन सारी चेंजेस की थीम क्या है? तो सो आई हैव माय ऑब्जर्वेशन, आई विल शेयर विथ यू गाइस टू, बट इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन गिव सम क्लू कि जी इसलिए थी. आई विल ओपन द चैट बॉक्स आल्सो. एनीवन? या प्रदीप, इट्स अप टू राइट. अगर 10 करोड़ से कम है या 10 करोड़ तक है तो कारो एप्लीकेबल नहीं हुआ. आई टोटली एग्री विद यू. एनीवन थिंक अबाउट कि व्हाई ये जो कारो के चेंजेस हैं, ये शेड्यूल 3 के चेंजेस हैं, क्या जरूरत थी? मतलब वो हम लोग एक बहुत कॉमन पैरालांस में सोचते हैं कि भैया ऑडिटर को खूब काम दे दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, उसकी स्कोप बढ़ा दो, बट कभी किसी ने सोचा है कि चेंजेस का रिक्वायरमेंट क्यों था? I will wait for 30 more seconds, then I will give you my answer in this regard. Anyone? Okay. So अगर आप देखेंगे कारो शेड्यूल 3 के सारे चेंजेस, जो भी जितने भी चेंजेस है, इट इज मोर टूवर्ड्स लोन, जो कंपनी ने लोन ले रखा है, कोई मिसकंडक्ट हो रखा है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन हो रखा है, राइट? जनरल मिस एप्रोप्रिएशन कैसे होता है भाई? विद इन अ ग्रुप कंपनीज लोन दे दिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हो गए, फंड का एम्बेजलमेंट हो गया, फंड का स्नाइफिंग हो गया सारा. तो अगर आप क्लॉज बाय क्लॉज सारी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एम ये है कि ये जो सारी सिचुएशन होती है, वी हैव सीन इन पास्ट आल्सो, राइट? वी हैव सीन वेरियस बैंकिंग फ्रॉड्स, छोटे बड़े सारे हमने देखे हैं. तो पर्पस यहाँ पे यही है कि भैया क्या होता है, जब जैसे बैंक में, बहुत एक कॉमन एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे आप लोगों ने आप लोग बहुत डील करते होंगे, स्टॉक स्टेटमेंट की बात करते होंगे आप. स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट, क्वार्टरली, मंथली जो बैंक पे जाता है, जो बोरोवर ने ले रखा होता है, राइट? एंड देन उसी कंपनी की ऑडिट होती है, वो ऑडिटर कोई और करता है. स्टॉक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट किसी सीए से लिया, ऑडिट किसी और से लिया. तो देर आर वेरी कॉमन चैलेंजेस विच बैंक्स वर फेसिंग, या जो ओवरऑल जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी गई तो पता पड़ा कि भैया ये तो थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा चीजें. तो क्या करा, कारो रिपोर्ट में इस चीज को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, राइट? सो विल डिस्कस अबाउट द क्लॉज 2, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ.
तो उसमें जैसे मान लीजिए क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह दिया, ठीक है, सीएसए सर्टिफाइड करके दिया, बट पता पड़ा कि कॉमन बुक्स ऑफ जो अपनी नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इमेजिन अ सिचुएशन, तो क्या हॉरिबल सिचुएशन होगी वो, राइट। तो ऐसी चीजों को कारो रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया, और ये ओनरशिप एक स्टैचुटरी ऑडिटर पे, सीए पे ये डाली गई कि भैया आप भी देखो उस चीज को, हाईलाइट करो, रिपोर्ट करो इफ इट इज देयर, राइट। इफ पता पड़ा कि जी जो आप स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप 100 करोड़ का दे रहे हैं, वास्तव में माल जो पड़ा है वो 20 करोड़ का ही पड़ा है, राइट। या आपने 100 करोड़ का दे दिया, अदर साइड भी हो सकता है 200 करोड़ का स्टॉक स्टेटमेंट पड़ा, लाइक दैट। या हो सकता है आपने कोई टर्म लोन के लिए आपने कोई इंटेंजिबल सॉरी आपने टेंजिबल इमूवेबल एसेट दिया, लैंड बिल्डिंग वगैरह वो दी, पता पड़ा कि उसकी रजिस्ट्री कंपनी के नाम से नहीं है या वो डिस्प्यूटेड है। इमेजिन दो सिचुएशन, तो बैंक अपने आप को कहाँ सिक्योर करेगा? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सारे प्रीवियस सिचुएशन प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एनहांस करी गई है। और मैं एग्जांपल दूं, ये काफी कॉमन है, राइट, स्पेशली इन एनबीएफसी। जैसे शॉर्ट टर्म लोन है, राइट, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया किसी कंपनी ने, राइट, और उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए ले लिया। एक सीसीओडी का लोन था जी। सीसीओडी का लोन किस लिए मिलता है आपको? आपको मिलता है डेटर के लिए, आपको मिलता है सेल्स के लिए एंड ऑल, उन सबके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, कि भाई साल में दो तीन बार आपका साइकिल पूरा हो जाए, राइट, कि आपने माल खरीदा, बनाया, रॉ मटेरियल वगैरह, देन उसको बेचा, बेचने से डेटर हुआ, डेटर से कलेक्शन हुआ, एंड देन फिर बैंक को दे दिया आपने जो भी पैसा लिया। तो शॉर्ट टर्म लोन लिया आपने, लेकिन आपने तो वो शॉर्ट टर्म लोन तो ले लिया किसी ने, मान लीजिए आपकी किसी भी कंपनी ने, और उसको यूटिलाइज लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया। वेरी कॉमन एग्जांपल जी, प्रॉपर्टी मिल रही थी जगतपुरा में बहुत बढ़िया, उसको खरीद लिया जी, बढ़िया, उसके दाम बढ़ेंगे या 6 महीने में, मेरे को तो लेके बेचने का आइडिया था बट नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, दीज रिक्वायर्ड रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन इनकी रहती है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, right? So this is the theme. I hope you guys all through with this, and in case any query concern, chat box में बोल सकते हैं. Now we will start with clause by clause analysis. So what I did for simplification, जो भी कारो 2016 से चेंजेस थे क्लॉज बाय क्लॉज में, वो मैंने चेंजेस बोल्ड इटैलिक्स में रखे, राइट। इफ यू सी फर्स्ट क्लॉज, it is there, it was there in 2016 caro also. It was fixed asset previously, now it is changed to pp, because अगर आप schedule 3 में देखेंगे, सब जगह देखेंगे, आप ES में देखेंगे, वहां पे भी pp वर्ड यूज कर रखा है. Another point is which was not there is related to intangible asset, right? Proper records of intangible asset. मैं जब proper records की बात करूं, तो जैसे फिक्स एसेट में, तो जैसे मैं टेंजिबल एसेट की बात करूं, फर्नीचर, फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, इट इज वेरी सिंपल, राइट। इनटेंजिबल एसेट में इट्स डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर परचेज करा, राइट, अब वो सॉफ्टवेयर परचेज किससे करा, क्या करा, लाइफ क्या है, यूज क्या हो रहा है एंड ऑल, कहाँ लगा है, उसका आइडेंटिटी क्या है एंड ऑल। सो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट को यहाँ पे इस कारो 2020 में ला दिया गया। क्रिटिकल जब होते हैं, जब आपके इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरह के जो होते हैं, राइट, उनका कैसे रिकॉर्ड रखे कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है या बिल्कुल ही नामुमकिन है, नहीं, होता सब कुछ है, बट द पॉइंट इज प्रॉपर रिकॉर्ड उसका मेंटेन कर रखा है नहीं कर रखा, अलॉन्ग विद जो भी डॉक्यूमेंट है उसके। या तो दिस इज मेड कंपल्सरी, और यू कैन से रेलेवेंट फॉर द रिपोर्टिंग. मूविंग टू सी पॉइंट, इट्स आई डिस्कस ब्रीफली कि भाई जो आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके, वो आपके कंपनी के नाम पे है या नहीं है. और देन एक फिर टेबल का भी रिक्वायरमेंट दे दिया गाइडेंस नोट में, वो ये दे दिया कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, राइट, किसके नाम पे, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो क्या प्रमोटर, डायरेक्टर या उनके रिश्तेदारों के नाम पे है, राइट, कितने टाइम से है और क्यों है. ये सारी रिक्वायरमेंट कारों में हम लोगों से, ऑडिटर से मांगी गई है, राइट. और जहां पे लीज है, जहां पे इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिकॉज इंडेस में लीज का थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है, बिकॉज इट वाज आरओयू एंड लीज लायबिलिटी एंड ऑल, तो थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वहां से लीज को उसको हटा दिया. वो देन मतलब लीज का बिकॉज अरेंजमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, तो यहाँ से हटा दिया गया. Moving on to next clause, again D and E, these are new clause.
डी टॉक्स अबाउट कि कोई रिवैल्यूएशन हुआ है क्या. सो रिवैल्यूएशन व्हाट आई हैव सीन कॉमनली इज कि इंडिया जब फर्स्ट ईयर ऑफ अडॉप्शन होता है, ट्रांजिशन ईयर होता है, देयर इट्स अ चॉइस, अकाउंटिंग चॉइस, राइट, कि वन टाइम करना है या हर ईयर करना है. तो जनरली आई हैव सीन जहाँ पे लगता है कि नहीं जी, जितनी बुक्स में हमारी है फिक्स असेट की वैल्यू, उससे ज्यादा हमारी आज की डेट में फिक्स असेट की वैल्यू है. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो वन 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 फैक्टर फॉर दिस सिचुएशन. तो यहाँ पे क्लॉज में यही पूछा गया है कि भैया कोई रिवैल्यूएशन कराए. रिवैल्यूएशन अगर 10% से ऊपर है तो उसका रिपोर्टिंग हमें करना है. देन फिर नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट. ई पॉइंट टॉक्स अबाउट द बेनामी ट्रांजेक्शन की या बेनामी प्रॉपर्टी का कोई मैटर रिलेट कुछ कुछ भी कंपनी के अगेंस्ट चल रहा हो, तो कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हो, तो उसके लिए आपको बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट देखना है 98 का, और उसके अंडर रूल जैसे बने हुए, जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट होता है उसके रूल होते हैं, वैसे ही वहां पे होते हैं. अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम कैसे देखें, हमें कोई बताए ना, राइट. तो आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर करना है. ऑडिट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं, देखो जी, नोटिस आया होगा, राइट. आप उनके लीगल डिपार्टमेंट या सेक्रेटरी या जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, हम उनसे इंक्वायरी करते हैं कि भैया लीगल केसेस वगैरह क्या चल रहे हैं. हम उनसे रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं, राइट. उसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस में हम स्क्रूटनी भी करते हैं. हम 100% उसको देखते भी हैं कि कौन सा लीगल एक्सपेंसेस किस केस के जरिए चल रहा है एंड ऑल, राइट. उसके अलावा जो भी है पब्लिक डोमेन पे जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो भी हम लोग देखते हैं. तो देयर आर वेज, इट्स नॉट लाइक कि भाई उसने मुझे बताया नहीं, मेरे को पता नहीं पड़ा, राइट. आपको अपने ड्यू और आपको अपने पूरे ऑडिट प्रोसीजर करने ही है, राइट. इफ यू हैव डन योर ऑडिट प्रोसीजर, उसके बावजूद भी अगर कंसीलमेंट है, कुछ नहीं बताया, देन it's not up to you guys, but yes, onus is on us कि हमने प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर उसके रिगार्डिंग करा है नहीं करा, as per the applicable standard or be it auditing standard, be it guidance note, as I discussed previously also, right. So analysis I have discussed with you. Nothing to add. Yeah. हाँ, एक चीज और, the last line which I will talk about. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि भाई 31 मार्च 2022 का ऑडिट करें, 2022 तक है तो है, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करना. नो, यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर सब्सिक्वेंट अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, 31 मार्च टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ बैलेंस शीट या अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल बाय द बोर्ड और ऑडिट कमेटी एज द केस में बी, राइट, तब तक भी आप वो चीज इंश्योर करो. देयर इज नो एस्केप, राइट. देयर इज अ सेपरेट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इन, वो भी आपको इंश्योर करनी है. I'm moving to next clause, which is related to inventory. So if you'll see, the first clause is largely the same. The only thing is कि भाई फर्स्ट क्लॉज में ये चेंज आया है कि अगर आप मैनेजमेंट ने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करा, राइट, इन्वेंट्री के फिजिकल वेरिफिकेशन में कोई वेरिएशन निकला हो 10% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, राइट, तो वो 10% ऑफ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री नीड टू बी रिपोर्टेड, राइट. उसमें एक थोड़ा सा लिवरेज ये दे रखा है कि भाई कई बार सेम क्लास ऑफ इन्वेंट्री में कुछ एक्सेस भी निकलता है, कुछ शॉर्टेज भी निकलता है, तो यू नीड नॉट टू रिपोर्ट एक्सेस एंड शॉर्टेजेस सेपरेटली. इट यू गाइस कैन कंसोल द सेम, बट रिपोर्टिंग जो है वो आपको उसको सेपरेट ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री पे देखना है, राइट. Then the next clause, which is very important, right, and I will spend 5-10 minutes on this clause. Why it's important? Because इसको समझना आपको पड़ेगा प्रॉपर और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. क्लाइंट विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ लाइक जो मैंने भी प्रैक्टिकली अभी डील करा है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आता है. तो हमें सेकंड बी क्लॉज इन्वेंट्री का ये बोलता है कि अगर कंपनी की कोई सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट है which is in excess of rupees 5 crore, right? Here the word uses sanction working capital limit. तो अगर किसी को सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली हुई है, चाहे इसमें ड्रॉ कराओ ना कराओ, राइट, तो भी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लाइंट ये बोलता है जी 5 करोड़ ले तो रखी है मैंने 5 करोड़ से ऊपर, लेकिन ड्रॉ ही नहीं करा मैंने, राइट, या मैंने तो 1 करोड़ ही करा एंड सो ऑन, राइट. इवन दैट केस ऑल्सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपकी एप्लीकेबल होती है, राइट. इसमें नेक्स्ट पॉइंट फिर पूछा गया, नेक्स्ट पॉइंट, और ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बोला है कि भाई वर्किंग कैपिटल लिमिट फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसी और से ले ली, कुछ भी ले ली, तो वो नहीं है.
तो वर्ड केयरफुली आपको एनालिसिस करने पड़े। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट की, उसमें ये बोला गया, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे आप, वेदर द क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट, रिटर्न्स और स्टेटमेंट, तो इसका ना स्कोप बहुत बड़ा है। रिटर्न्स और स्टेटमेंट में उसने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, कोई कुछ भी कंपनी दे बैंक को इसके रिगार्डिंग, या अगर मैं बात करूं कि सैंक्शन लेटर, जो बैंक का एग्रीमेंट है, जो भी लेटर है, वहां पे जो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी है उसकी और फर्दर क्या रिक्वायरमेंट है, मंथली क्वार्टरली, वो सारे सबमिशन जो भी देने, तो उसमें सारी चीजें हो गई। सो आई हैव कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां पे कंपनी ने बोला कि जी हमने क्वार्टरली उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या मैं बोलूं जैसे अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे रिजल्ट्स वगैरह हम लोग शेयर करते हैं क्वार्टरली, तो रिजल्ट तो शेयर करते हैं भैया, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें शेयर करते हो, मैं बोलूँ स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट, क्रेडिटर स्टेटमेंट, तो वो भी आपके रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है। और अगर उन सब में अगर कोई डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू क्वार्टरली बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो रिपोर्ट करने की जरूरत है, राइट। देन वन प्रैक्टिकल सिचुएशन आई डेल्ट इज कि भाई क्वार्टरली स्टेटमेंट हम सबमिट तो करते हैं, लेकिन जब हम सबमिट करते हैं उस टाइम में ना प्रोविजनल होते हैं, फाइनल नहीं होते, राइट, क्योंकि एलओडीआर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रूल्स के हिसाब से 45 दिन का टाइम लगता है। जनरली बैंक के जो क्लॉजेस होते हैं उसमें 7 दिन 10 दिन के अंदर मांगते हैं, राइट। तो पहले कंपनीज प्रोविजनल दे देती हैं, राइट, बाद में रिजल्ट दे देती हैं। तो अगर आप गाइडेंस नोट में जाके देखोगे वहां पे इस चीज के बारे में लिखा हुआ है, अगर आपने दी है पहले, चाहे वो प्रोविजनली हो, डिफरेंस है तो नीड टू रिपोर्ट। डिफरेंस बाद में अगर कंपनी ने ही रिकरेक्ट करके, भाई कंपनी ने बोला अभी हम प्रोविजनल दे रहे हैं, फिर जब फाइनल हो गए नंबर तो फाइनल दे दिए, अगर वो कंपनी ने करेक्ट कर लिया तो ठीक है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट अबाउट द जजमेंट रिपोर्टिंग। कई बार ये होता है कि जी 1,000 रुपए का डिफरेंस है, 10,000 रुपए का डिफरेंस है, रिपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, ट्रस्ट मी। ये कारो जो है, कारो 2020 है, ये फैक्ट रिपोर्टिंग है। अगर आपका डिफरेंस है, यू नीड टू रिपोर्ट इट, राइट, वेरी सेफली। चाहे वो 10,000 का हो, 5,000 का हो, देन क्लाइंट नीड टू कन्विंस कि क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। एंड ऑन अ डिस्क्लोजर पार्ट, क्लाइंट कैन गिव द रीजनेबल जस्टिफिकेशन, जो हो, जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो, क्लाइंट को भी एक्सेप्टेबल हो, आप लोग वो चीज दे सकते हैं, क्योंकि कॉमन एक डिस्क्लोजर आपका Schedule 3 भी रिक्वायर करता है, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इफ यू विल सी, अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड दिस इन मेनी मेनी ऑफ लिस्टेड कंपनीज आल्सो। यहाँ पे आप इस साल तो देखेंगे जब उनकी एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी, आप देखेंगे कि जी कारों में क्लॉजेस हैं ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज थर्ड क्लॉज, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो ये पहले छोटा हुआ करता था, अब थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। क्या क्या क्लॉज करें, विल डिस्कस वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया है या एडवांस दिया है जो कि लोन के नेचर का है, राइट, कोई गारंटी दी है, सिक्योरिटी दी है, ठीक है, किस किस को दी है भाई, वो दिए कि पहली बात तो कि अपनी ग्रुप कंपनीज को दिए। ग्रुप कंपनीज में कौन हो गए, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट वगैरह हो गए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जैसे आप ब्रैकेट में देखेंगे लिखा हुआ है, नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस टू गिव लोन, लाइक बैंक एंड एनबीएफसी, उनके लिए ए क्लॉज एप्लीकेबल नहीं। तो ए क्लॉज का सब क्लॉज है कैपिटल ए क्लॉज, वो बोलता है कि भाई अपनी ग्रुप कंपनीज में दिए, ठीक है जी, उसका बताओ। देन सेकंड पॉइंट, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी पार्टीज अदर देन टू सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। तो चाहे ग्रुप कंपनीज को दियो, अदर देन ग्रुप कंपनीज को दियो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज वेल एज मैक्सिमम अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। मैक्सिमम अमाउंट मतलब जितना दिया और उसके पेटे मिल गया, इट्स नॉट अबाउट नेटिंग, राइट। बैलेंस शीट में तो सिचुएशन आई जाएगी, उन्होंने ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर भी यहाँ पे मांगा है। और बी क्लॉज की मैं बात करूं, देन बी क्लॉज के सब, देन नेक्स्ट क्लॉज की बात करूं, दैट इज अ बी क्लॉज, वेदर इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी प्रोवाइडेड या सिक्योरिटी दिया है, जो भी है, सारी चीजें, या एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन, वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है नहीं। हेयर यू नीड टू अप्लाई योर जजमेंट कि भैया दे दिया, मार्केट रेट चल रही है 12%, आपने 2% पे दे दिया उसको, राइट, या आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे व्यवहार में, जी दिया हुआ है हमने तो, राइट। या फिर उसका कोई सर्टेन पीरियड ही नहीं है, देके भूल गए और बोल रहे हैं कि जी कब आएगा ये अमाउंट, पता पड़ा कि जब हम मांगेंगे तब दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है हमारे तो आपको वहां पे वो घर की बात छोड़ के आपको कंपनी पर्सपेक्टिव से देखना है। हियर द पॉइंट इज वेदर दैट all these things are prejudicial to the interest of the company.
आपको लगता है डेफिनेटली यू नीड टू रिपोर्ट इट, राइट? डोंट फॉल इन अ ट्रैप कि भैया हाँ जी चलो सब बढ़िया है। नहीं, कंपनी, आप कंपनी के ऑडिटर हो, कंपनी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट? देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन। भाई मैं अगर बात करूं कि जो जो अभी मैंने जस्ट अभी बात करी कि भाई उनका रीपेमेंट का शेड्यूल वगैरह है, इंटरेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम आ रहा है, और दोनों मिला के किस्तें वगैरह वो सब टाइम टू टाइम आ रही है। पता पड़ा आपने लोन दिया इनिशियली, इमेजिन अ सिचुएशन, एक कंपनी ने लोन दिया, ठीक है, लोन दे दिया, ठीक है, लोन का एग्रीमेंट भी कर दिया, उसमें सारा सब कुछ है कि जी इतना ब्याज लगेगा, ऑनलाइन बेसिस पे ब्याज है जो नॉर्मल मार्केट पे रहता है, राइट? मंथली या क्वार्टरली आपके जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो सब भी डिटरमाइन कर दी। लेकिन पता पड़ा वो चीज हो ही नहीं रही है, राइट? कुछ हो ही नहीं रहा है, उस पर मूवमेंट देके भूल गए जी। तब उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। सब कुछ की मैं बात करूं कि वेदर रिकवरी के लिए कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने स्टेप्स लिए या नहीं लिए, मैनेजमेंट ने कंपनी ने रिकवरी में के स्टेप्स लिए नहीं लिए, इफ रिक्वायर्ड लीगल नोटिस वगैरह या जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड है वो करी है नहीं करी, वो सारी चीजें आपको देखते हुए फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्लॉज इज ऑल्सो अबाउट कि भाई अगर कोई ओवर ड्यू है आपका मोर देन 90 डेज में, ये जो मैंने अभी डी पॉइंट जो पढ़ेंगे आप, तो वो ये जो मैंने जस्ट डिस्कस करा उसी के बारे में बात करता है। वहां पे एक चीज स्पेसिफिकली दे दी कि भाई ओवर ड्यू है, स्पेसिफाई कर दिया ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, तो वहां पे आपको देखना ही देखना पड़ेगा। अगर आप लोग एनबीएफसी बैंक के ऑडिट करते हो, यू गाइस आल्सो अवेयर कि जो एनपीए के क्राइटेरिया वगैरह होते हैं वहां पे 90 डेज वगैरह का आता है। तो सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई अगर 90 दिन से ऊपर रहा तो फिर कुछ गड़बड़ है, फिर तो देखो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें नहीं करें। मूविंग ऑन टू ई क्लॉज कि भाई ये जो लोन वगैरह ये जो सब भी दिए हैं वो कहीं जब ड्यू हो रहे हो तो कहीं रिन्यू तो ना कर दें। जनरली अगर आप कॉमन मार्केट की लैंग्वेज में, या जो कॉमन हम इसको बोलते हैं लैंग्वेज यूज करते हो, कहते हैं एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग हिंदी में अगर मैं बोलूँ सदाबहार, लोन दिया है सदाबहार के लिए दिया। आई डोंट वांट टू नेम फ्यू एनी कंपनीज, बट कई कंपनीज जो अभी आपने अगर रिसेंट कुछ सालों में पढ़ा हो तो एवरग्रीनिंग का एक बहुत बड़ा इश्यू निकल गया है कि भैया लोन दे रखा था, जब लोन के ड्यू होने की बारी आई और लोन दे दिया या उसका एक्सटेंड कर दिया, राइट पीरियड, और वो और लोन जो दे दिया उससे पुराना लोन चुका दिया, पता पड़ा पुराना लोन 100 का था, नया लोन 150 का दे दिया, एंड सो ऑन, एवरग्रीनिंग चलती रही। तो ये बहुत ही मतलब मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको इंश्योर करना है कि भैया हाँ ऐसा कोई एवरग्रीनिंग तो नहीं है ना, एंड यू गाइज नीड टू रिपोर्ट दैट इन योर रिपोर्टिंग ऑल्सो। मूविंग ऑन टू एफ क्लॉज दैट जो भी कंपनी ने लोन्स एडवांसेस वगैरह वो सब जो भी दिए हैं, राइट, वो आपके उनका मैं बोलूँ रीपेमेंट का पीरियड क्या है, राइट, या उनका टर्म्स वगैरह क्या है। ये बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन है इन मेनी कंपनीज या ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बात करूँ बड़ी आईटी कंपनी अगर आप इंडिया में देखोगे, राइट, वहां पे ये है कि भाई नई नई सब्सिडरी खुलती है, नई नई सब्सिडरी को फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कई बार क्या होता है रीपेबल ऑन डिमांड होता है लोन, कि लोन दे दिया जब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये जब रीपेबल ऑन डिमांड वाली जब बात आती है तो ये लगता है कि भैया सदा के लिए दे रखा है, कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है, राइट। तो उसको भी आप लोगों को केयरफुली से देखना पड़ेगा अगर आपके भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है। Yeah, this analysis consists what I discussed. You guys can quickly spend 30 seconds on that. So if you see fourth bullet point analysis में, तो ये रजिस्टर वगैरह वो सारे जो हमारे कंपनीज का 189 वगैरह जो भी सेक्शंस वगैरह 189 एंड सो ऑन फर्दर जो भी सेक्शन है उसमें रिक्वायर्ड है उन्हीं की बात करता है कि रजिस्टर में ये सारी चीजें हैं नहीं है, रिपोर्टेड है नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन एज आई सेड फर्स्ट बुलेट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपको इवैल्यूएट करने पड़ेंगे प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी पे है नहीं है। then we discuss about like here it is given in the third bullet point कि कोई 0% इंटरेस्ट पे लोन दे रखा हो, evergreening we discuss, right? Moving on to fourth clause. So fourth clause में कोई change नहीं है, that is related to section 185 186, so we'll not discuss about that. Moving on to deposit,
तो डिपॉजिट के क्लॉज में भी ना कोई चेंज नहीं है, ओनली चेंजेस विच इज अगेन इम्पोर्टेंट। हम ऐसा भी बोल दिया कि ज्यादा चेंज नहीं है, बट एक चेंज है, बट वो जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट स्पीक्स अबाउट डीम डिपॉजिट, राइट। इन लीगल फॉर्म में आपको डिपॉजिट नहीं दिख रहा, बट अगर आप सब्सटेंस में जाके देखेंगे तो यू विल सी कि भाई नहीं, ये तो डिपॉजिट का नेचर है, राइट। तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं, मतलब मैंने भी प्रैक्टिकली डील करी है, कई बार क्या होता है एडवांस आ जाता है, कस्टमर्स पड़ा रहता है जी साहब, पता पड़ा 365 दिन से पड़ा है। तो वहां पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी अगर आप डिपॉजिट के रूल्स वगैरह जाके देखोगे, वहां पे भी बोल रखा है कि भैया ऐसी सिचुएशन में दे में टर्म एज अ डीम डिपॉजिट। तो वो चीज भी आपको देखनी पड़ेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेसिफिकली जो गाइडेंस नोट में बोला हुआ है, आपको कंप्लायंस इंश्योर करने, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014, DPT3, इफ यू गाइस कम अक्रॉस DPT3 आप भरते होंगे अपने क्लाइंट के, उसमें देखना है वो सारे उसमें सही तो है ना। तो ऐसा पता पड़े कि DPT3 जो कंपनी ने भरा हुआ है और आप ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियल पे, वो मैच नहीं खाते हो, राइट, वो भी कंसिस्टेंट हो आपके, राइट। उसके अलावा जो भी CLB, NCLT, RBI वगैरह के जो भी आपके मैं बोलूँ गाइडलाइंस वगैरह हैं, दैट यू गाइस नीड टू इंश्योर। कॉस्ट रिकॉर्ड, अगेन देयर इज नो चेंज, सो विल स्किप दिस। स्टैच्यूटरी ड्यूज की अगर मैं बात करूं, तो स्टैच्यूटरी ड्यूज में भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। GST पहले हम लोग ना, मतलब मैं बोलूं कि कारों के क्लॉज में नहीं था, बिकॉज इट केम इन 2070 वेयर इज कार 2016, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, नथिंग एल्स, राइट। और मतलब कई कई ऑडिट रिपोर्ट में आप देखोगी कि A क्लॉज B क्लॉज में रिपोर्टेशन होता, तो सारे एक्ट दोबारा लिखने लग जाते थे, तो एक वो उसके लिए मना कर दिया, स्पेसिफिक रेफरेंस दे दिया, एंड नथिंग और। Then this is very important, previously unrecorded income, right। सिचुएशन की बात करें कि भैया क्या हुआ, कोई सर्च सर्वे रेट कुछ ऐसी चीज हुई आपके क्लाइंट के, राइट। वहां पे सर्च सर्वे हुई होगी 3-4 सालों की, वो सब पुराने जो हैं ईयर्स वगैरह उन सब की हुई होंगी, और पता पड़ा क्लाइंट ने आपके एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी मेरी ये इनकम थी, मैंने डिक्लेयर नहीं करी थी, अब कर देता हूँ, एंड ऑल, वट एवर बी द सिचुएशन। तो इमेजिन ऐसी सिचुएशन में कि पुराने सालों की आपने ऑडिट करी है, राइट, ऑडिट रिपोर्ट दी है आपने, और उन्हीं सालों में क्लाइंट बोले कि जी मेरी तो ये इनकम रह गई थी। तो सिचुएशन आप इमेजिन करो कि क्या सिचुएशन होगी, और आपके ऊपर ओनस क्या होगा, राइट। तो वो ओनस को भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर यू हैव डन योर एडिकेट ऑडिट प्रोसीजर, कहीं आप पे क्वेश्चन तो ना है कि भैया आपने अपने प्रोसीजर परफॉर्म ढंग से नहीं करे थे, ये रह गया, ये रिपोर्ट नहीं करा, एंड ऑल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, राइट। तो आप खुद सोचो कि आप किसी की 21-22 की आप फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हो, पता पड़ा उसके थोड़े टाइम पहले रेड सर्च सीजर हुई थी, उसने डिक्लेयर कर दिया अमाउंट, राइट। तो डिक्लेयर कर दिया तो 21-22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आएगा ही, जाएगा ना वो, आप कहीं कभी तो बुक्स में इनकम रिकॉर्ड करोगे ही। एंड क्योंकि आपने 21-22 फाइनेंशियल ईयर में उसको टैक्स वैक्स भी दिया हुआ, तो बुक्स में वो भी आएगा। तो ये सिचुएशन बहुत ही केयरफुली आपको इवैल्यूएट करनी है। डेफिनेटली ओनर्स विल कम टू यू गाइस। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन की बात करो, मैं ऐसे क्लाइंट कभी नहीं करूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा कि भैया ऐसे नहीं करना है, हाथ जोड़ लिया, कंसिडरिंग करंट सिचुएशन देखते हैं, राइट। तो आप लोग इसको केयरफुली एनालाइज करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एक ही पॉइंट में दे रखा है, लेकिन ये मतलब मैं इस क्लॉज को बोल सकता हूँ इसका जितना पनिशमेंट आपके क्लाइंट असेसी पे है, उतना ही इसका रिपरकेशन हम लोगों पे भी है। तो डील दिस सिचुएशन वेरी वेरी केयरफुली, एंड इफ रिक्वायर्ड लीगल कंसल्टेशन लीजिए, डिस्कशन कीजिए, बट डोंट फॉल इन अ ट्रैप कि हाँ जी चलता रहता है, ये तो चलता ही जाएगा। don't fall in that, right, otherwise department may come to you, हम लोगों पे भी क्वेश्चन आएगा, we have recently seen that, so please avoid that, very important। सुनील सर, इसमें मेरे को एक क्वेरी भी है, मतलब Definitely, yeah। है ना, बिकॉज इफ यू आर डीलिंग विद अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड और एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उसके डायरेक्टर्स के पास कोई इनकम टैक्स के नोटिसेस या कोई कोई अनडिस्क्लोज इनकम या कुछ वो करते, देन अपन को उसमें रिपोर्टिंग करनी है, नहीं करनी, मतलब। देखो, आपको देखनी पड़ेगी, सारे प्रोसीजर इंश्योर करने पड़ेंगे, वो जो डायरेक्टर की इनकम है, राइट, डायरेक्टर की इनकम का सोर्स क्या है, राइट। हम बोलते हैं कई बार क्या होता है,
जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं या सीसीज वगैरह हैं या आपके क्लाइंट वगैरह हैं, ये होता है कई बार कोशिश ये होती है क्लाइंट की मेरी कंपनी हर्ट ना हो, इम्पैक्ट ना हो, जो भी है Right. मैं पर्सनल उससे देख रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे केयरफुल असेसमेंट ये करना है कि वो जो भी डायरेक्टर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर सोर्स ऑफ इनकम उनकी पर्सनल रिटर्न में है ही रेम्यूनरेशन, कमीशन फ्रॉम द कंपनी एंड ऑल, देन इमेजिन द सिचुएशन, वो पैसा कहाँ से आया, राइट। तो वो आपको केयरफुली असेस करनी है, केयरफुली असेस करके इंश्योर होके देखो, आपको डबली श्योर होना पड़ेगा उसमें, और नीट एंड क्लीन सिचुएशन है तभी आप आगे बढ़ो। Right. Right. अगर Right. आपको लग ही रहा है, अगर वो अनडिस्क्लोज इनकम कहीं ना कहीं से कंपनी से ही निकाली हुई है, राइट, कंपनी का ही, मतलब इमेजिन अ वर्स सिचुएशन कि भाई खर्चे बढ़ा दिए, राइट, उधर खर्चे बढ़ा दिए, बिल ले लिए भाई, कैश एम्बेजलमेंट हो गया एंड Right. ऑल। Right. Right. तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, वो तो नॉट नॉट एन इजी जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, हो सकता है सिचुएशन में कई बार कई सिचुएशन होती है कि जी मतलब और दूसरी इनकम हो, दूसरा कमीशन हो कि जी मुझे इससे कैश आया हुआ था, ये कमीशन आया था, ये मेरे पर्सनल उस पे है, मैंने डिस्क्लोज नहीं करा। तो प्रॉपर अगर उसके डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, डेफिनेटली आप लोग अपनी आपके क्लाइंट की कंपनीज की भी ऑडिट कर रहे होंगे और पर्सनल रिटर्न भी देख रहे होंगे, राइट। तो वहां पे आपको इंश्योर करना है, अगर वो सारे रिकॉर्ड है एडिक्वेट है तो गो विद इट। नहीं है, नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे, कागज नहीं बोल पा रहे, तो डोंट टेक रिस्क। Then moving on to next clause, this is related to the default. सिंपल अगर आपको डिफॉल्ट है कुछ आपके, मैं बात करूं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल्ड इटैलिक्स में ए पॉइंट में हाईलाइट कर रखा है, टॉक्स अबाउट एनी लेंडर, राइट। इन प्रीवियस क्लॉज वी टॉक अबाउट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बात करता है एनी लेंडर, सब सारी जनता आ गई यहाँ पे, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एवरीथिंग। तो अगर कोई रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोराइंग में, राइट, और उसके इंटरेस्ट में अगर कोई डिफॉल्ट वगैरह हुआ है तो वो सारे आपको डिफॉल्ट यहाँ पे रिपोर्ट करने हैं। ये जो टेबल है ये भी गाइडेंस नोट वगैरह में और जो भी कारो का जो भी सर्कुलर वगैरह आया था, इट इज मेंशन देयर, कितने टाइम का डिफॉल्ट है, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, प्रिंसिपल है या फिर आपका इंटरेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट लेंडर वाइज डिफॉल्ट वगैरह है, वो सारा मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कई बार इसमें ये होता है, कई बार तो वो इस क्लॉज की भी कंप्लीटनेस इंश्योर करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। मैं बात करूं कि ऐसा नहीं है कि भैया उसने कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट दे दिया, हमने मान दिए, नहीं, सारी चीजें इंश्योर करो। एंड ऐसी ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है, गो विथ डायरेक्ट बैंक कंफर्मेशन इन दो सिचुएशन, राइट, कि भैया कहाँ कहाँ एक्सपोजर है, वहां से आप डायरेक्ट कंफर्मेशन ऑब्टेन करो, राइट। कई बार ये होता है फर्ज होते हैं डॉक्यूमेंट, कोई भी कुछ भी होता है, देन वी गाइस विल बी इन ट्रबल। देन देर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ विलफुल डिफॉल्टर, कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर अगर किसी ने डिक्लेयर करा है, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर लेंडर ने, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर कहाँ से देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं सिबिल की साइड से जाके कंपनीज के बारे में डिक्लेयर करती रहती है। व्हाट एडिशनली यू कैन डू, जितने भी बैंक से फैसिलिटी है आपके क्लाइंट की, उन बैंक को भी कंफर्मेशन भेज के आप बोल सकते हो कि वेदर इट इज लाइक कंपनी का कोई विलफुल डिफॉल्ट तो नहीं है, डिक्लेयर तो नहीं है, वो बैंक आपको कंफर्म करके दे सकता है। देन सी क्लॉज विच आई डिस्कस इनिशियली, कि भाई जो लोन लिया है, राइट, वो लोन उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करा है जिस पर्पस के लिए लिया था, कहीं डाइवर्ट तो नहीं करा। मैं अगर बात करूं कि भाई कोई बड़ा कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए लिया है, तो उसी पर्पस के लिए वो लोन यूज करा है, नहीं करा, राइट। या देर मे बी डिफरेंट केस ऑल्सो। तो द पर्पस इज ऑडिट प्रोसीजर ऑफ योर्स विल बी, क्या टर्म्स है लोन के, और वो पैसा वहीं पे ही यूज करा है, नहीं करा है। डेफिनेटली वन टू वन पैसे की ऐसे मार्किंग नहीं होती कि आप देखें कि हाँ जी वो वहां से आया वहीं गया, बट यस आप सब्सटेंस में उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके, मनी वाइज उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके। डी पॉइंट आई ऑलरेडी डिस्कस, लोन लिया है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, अप्लाइड कर दिया उसको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो देर इज अ if I'll talk about a housing finance company, a few years back, a very known housing finance company was in a big time trouble because of this particular issue. तो so कंपनी ने अब उस चीज से सबसे निकल गई है वो, आई विल नॉट नेम दैट कंपनी, बट बहुत ज्यादा ट्रबल हुई थी उसको, राइट। तो आप भी अपने कंपनी, छोटी कंपनी, एनबीएफसी, व्हाटएवर जो भी आप लोग कर रहे हो, वहां पे वो चीज जरूर इंश्योर करो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लॉज, दैट इज कि अगर कोई कंपनी ने फंड लिया है, राइट, किसी से भी लिया है, टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इस सब्सिडरी, या अपनी ग्रुप कंपनी की बात करूं जो एसोसिएट, जॉइंट वेंचर वगैरह उन सब का, तो लोन
किस पर्पस के लिए लिया है, क्या लिया है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कारो रिपोर्ट में। कई कई जहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग होती है, मैंने खुद में अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग देखी है तो मैं बात करूँ आईटी कंपनीज की होती है। एंड आईटी कंपनीज, नॉट ओनली द आईटी कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो एंड ऑल, nowadays you will see there are many of Jaipur's company, जयपुर में अगर मैं जयपुर की बात करूँ आईटी कंपनी का, जिनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट, दे हैव अ बैक ऑफिस स्ट्रक्चर है इन जयपुर। धीरे धीरे अपना कॉमन सेल्स का ऑफिस भी बाकी कंट्रीज में वो लोग खोल रहे हैं, और वो जो स्ट्रक्चर खोल रहे हैं, एंटिटी खोल रहे हैं, अब एंटिटी उनके लिए फंड भी चाहिए गई, फंड, बैंक फंड भी देता है उस चीज के लिए, तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है रिपोर्टिंग। देन लास्ट इज, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है विच इज प्लेज अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, मतलब मैं बात करूं कि भाई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बाय वे ऑफ शेयर वगैरह, जो भी बेट सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट कंपनी में, तो वो प्लेज कर रखा है, नहीं कर रखा, प्लेज कर रखा है, यू नीड टू रिपोर्ट, राइट, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए बैंक के डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। क्रिएशन ऑफ चार्ज एमसीए पोर्टल पे रहता है, आपको वो देखना पड़ेगा कि कहीं जो चार्ज क्रिएट करा है वहां पे तो नहीं आ रहा ना। डोंट गो विद द वर्डिंग कि क्लाइंट ने बोल दिया नहीं नहीं मैंने तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी, नहीं, एमसीए के चार्ज पे देखो आप। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर चार्ज क्रिएट नहीं हुआ देन इट्स लाइक कि फिर भी हम कह सकते हैं, बट पता पड़ा चार्ज क्रिएट हो रखा है, आपने रिपोर्टिंग ही नहीं करा, देन there is a trouble, then anyone can question our quality. Yeah, analysis I have discussed, so we'll quickly skip this. Yeah, one point, I think fourth bullet point I would like to discuss, I've dealt it practically, that establishing a one-to-one relationship with the amount of term loan and its utilization is not necessary. ये specifically guidance note में दे रखा है. So company may have a common account for different projects from which subsequent utilization is made. मैंने practically deal करा है. अगर मैं बात करूं NBFCs जैसे होती है, right? In NBFCs you will see कि CCOD अकाउंट होते हैं जनरली. CCOD अकाउंट मतलब जो उनके शॉर्ट टर्म वाले अकाउंट होते हैं, और शॉर्ट टर्म अकाउंट से वो अपना लोन डिसबर्स करते हैं. तो देर यू मे हैव अ क्वेश्चन कि यार ये तो शॉर्ट टर्म लोन का अकाउंट था, दे दिया लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 7 साल एंड ऑल. बट अगर आप उसका सिचुएशन देखोगे तो ये होगा कि वो जो शॉर्ट टर्म लोन का जो पेमेंट है, वो जो टर्म लोन कंपनी के सैंक्शन होते हैं वो भी 5-7 साल के होते हैं, उनके थ्रू होते हैं. तो यहाँ पे बात यही बोला है, एक थोड़ा सा कंसेशन वही दे रखा है कि 1-to-1 मैचिंग की जरूरत नहीं है. अगर कॉमन पैरेलल्स में आपको दिख रहा है, आप फंड फ्लो को जस्टिफाई कर सकते हो, तो देन इवन दैट केस इट इज ओके. इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको सीसीओडी अकाउंट से अगर किसी एनबीएफसी ने अपने लोन डिसबर्स कर दिए तो वो आपका डिफॉल्ट हो गया. Okay, let's move to the next clause. Next clause is related to IPO या preferential allotment. Preferential allotment का पैसा वगैरह आया, उसका utilization not. So there is no change in this clause as compared to CARO 2016. So we'll skip this too. Fraud reporting again. Fraud reporting थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. देखो फ्रॉड एक चीज केयरफुली आप लोगों को इवैल्यूएट करनी पड़ेगी. जब हम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, राइट. लेकिन जब कारो 2020 आता है ना, तो वो निकल के आता है कंपनीज एक्ट से, और कंपनीज एक्ट मटीरियलिटी की बात नहीं करता. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या फिर सारी फ्रॉड रिपोर्ट करना है? पता पड़ा पियोन 500 रुपए लेके भाग गया, वो भी रिपोर्ट करना है. तो देयर इट नीड अ जजमेंट, राइट, कि आपको किस तरह के रिपोर्ट करने हैं. एंड जो कारो है, जो कि कंपनीज एक्ट से निकल के आ रहा है, और हमारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, उनको मैरी हम कैसे करें, राइट. इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट टू, बट ये आपको केयरफुल असेसमेंट करना पड़ेगा, जजमेंट लगाना पड़ेगा. बट ऑब्वियस है, डेफिनेटली कोई बोलेगा कि यार मैंने 500 रुपए का कोई पियोन वाला फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करा कारो में, तो कोई आपका मतलब उसमें कुछ करेगा नहीं, राइट. मेरे जैसा बंदा तो ये बोलेगा यार तू मुझसे 500 की जगह 1000 ले ले और पिन छोड़ मेरा, राइट. तो थिंक अबाउट इट. बट कोई सीवियर मैटर है, कोई कुछ है, आपका मोटा अमाउंट है, चाहे वो एम्प्लॉय लेके गया हो, कुछ भी लेके गया हो, कोई भी थेफ्ट है विच यू बिलीव की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, प्लीज डू रिपोर्ट, राइट. क्लॉज बी डिस्कस अबाउट कि जहां पे ऑडिटर को फ्रॉड मिला है,
राइट, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह वो सब, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(12) हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर्स इन फॉर्म ADT4 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, आपको लगता हो जी ये तो बहुत ही गड़बड़ झाला हो रखा है, तो उस केस में इसका रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगा, राइट। इट वाज नॉट देयर प्रीवियसली, सेक्शन 143(12) तो था, राइट, बट 12 कहीं आइसोलेशन में था, अब उसको कारों में स्पेसिफिकली ब्रिंग इन कर दिया कि भाई तू आ, तू कहीं पीछे छूट रखा था, ठीक है। Then last, whether the auditor has considered whistleblower complaints, right, received during the year by the company. So whistleblower की अगर मैं बात करूं, आप लोगों में से कई लोग ये सोचेंगे यार वो तो लिस्टेड कंपनी में होता है, अपने प्राइवेट लिमिटेड में तो है नहीं, ठीक है, आई डू एग्री विथ यू, बट इमेजिन अ सिचुएशन, आप कोई MNC का ऑडिट करें, जयपुर में अपने बहुत है कि भाई बाहर का ग्रुप है, बाहर के ग्रुप ने एक सब्सिडी एक्सटेंशन टाइप का खोल दिया, विसल ब्लोअर पॉलिसी ग्रुप की होती है, राइट, ग्रुप की विसल ब्लोअर पॉलिसी है जो कि इंडियन एंटिटी, जयपुर वाली एंटिटी को भी इंश्योर करनी है। तो आप ये देखो कि ऐसा सिचुएशन है या नहीं, वो विसल ब्लोअर पॉलिसी कौन किसको जाता है, उसका कंट्रोलर वगैरह कौन है, मतलब कोई बाहर का बंदा है, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी एंड ऑल है, कोई ऐसी कंप्लेन हुई है which will impact you guys, which will impact the financial reporting and all, ये सब आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। डोंट गो बाय द थॉट प्रोसेस कि नहीं जी विसल ब्लोअर इज बाय डिफॉल्ट लिस्टेड कंपनी में है, हमें कुछ ही नहीं करना, नहीं, आप पॉलिसी वगैरह वो आपको देखने पड़ेंगे, एटलीस्ट डू इंक्वायरी, टेक इन रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। निधि कंपनी नेक्स्ट क्लॉज की अगर मैं बात करूं, इसमें I will not discuss about clause 1A, sorry, clause A and B. Last point की बात करें, whether there has been any default in payment of interest on deposit or repayment thereof for any period, and if so, the detail thereof. तो it is not special as compared to previous clause. थीम वही है, कोई default करी हो, कोई पेमेंट में डिफॉल्ट करी हो, वो सारा रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। आई हैव नॉट प्रैक्टिकली डेल्ट इट, बट जो भी लिटरेचर में है आई समराइज है ओनली। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्लॉज इज सेम एज प्रीवियसली, कि अगर कोई आपका, अगर ऑडिट कमेटी है आपकी, तो ऑडिट कमेटी में ट्रांजेक्शन वगैरह वो सब आपके अप्रूव हुए या नहीं हुए, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्म लेंथ बेसिस पे हुआ है, राइट। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कई लोग क्या एक कॉमन साइनोनाइम टाइप का यूज करते हैं। इफ यू गाइज रिमेंबर, पहले डोमेस्टिक टीपी एप्लीकेबल हुई थी, 5 करोड़ की लिमिट हुई थी एंड ऑल, राइट। उसके बाद में डोमेस्टिक टीपी का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हटा दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट तो है ही, कंपनीज एक्ट आर्म लेंथ की बात करता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तो है ही। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ग्रुप कंपनीज रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन लिया है तो आर्म लेंथ पे हो, प्रॉपर आर्म लेंथ पे, बिकॉज यू गाइज आर रिपोर्टिंग ऑन अ कार। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, सो पुराने कारों में ये हटा दिया था, पुराने पहले वाले कारों में हुआ करता था, ठीक है, 2016 में हटा दिया था। आई डोंट रिमेम्बर 2015 में था या नहीं था, बट जितना मुझे ध्यान है नहीं था, 15 वाले में भी एक बार के लिए हटा दिया था, बट बिफोर कारो 2014 पुराने वालों में हुआ करता था। नाउ इट इज अगेन ब्रिंग इन, यहाँ पे वापस लाए उसको। यही बोला गया है कि अगर कोई इंटरनल ऑडिट है, राइट, इंटरनल ऑडिट है और वो इंटरनल ऑडिट कमेंसरेट विद द साइज ऑफ द कंपनी है, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैं अगर बात करूँ सिंपल, अगर आप इसको अच्छे से वैल्यूएट करो, बड़ी कंपनी है, कॉम्प्लेक्स कंपनी है आपकी, मैं अगर बात करूँ एनबीएफसी है, आप कोई एनबीएफसी की ऑडिट करो, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपकी है, जहाँ पे आरबीआई का इतना सुपरविजन होता है, आरबीआई के इतने रूल्स रेगुलेशन एंड ऑल इंश्योर करने पड़ते हैं, राइट, और वहां पे इंटरनल ऑडिट ऐसे बंदे को रख लिया जिसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने इंटरनल ऑडिट किस तरह का बंदा रखा है। देयर यू नीड टू डिस्कस विद द क्लाइंट एंड यू नीड टू डिस्कस देम कि भैया ये तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पाएगा। सिमिलरली भाई, जो इंटरनल ऑडिट ने, इंटरनल ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर जो भी रिपोर्टिंग वगैरह करी है, राइट, वो सब आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट, वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर नॉट, कि भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट पे उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, अगर कोई इम्प्लीकेशन है, ऑडिट प्रोसीजर कुछ हमें चेंज करने, एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर वगैरह लगाने, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। व्हाट आई जनरली डू इज I will read entire internal audit report clause by clause. I will evaluate impact whether they are material or not. अगर कोई मटेरियल है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि भाई उसमें ऑडिट प्रोसीजर मुझे क्या करना है, फाइनेंशियल नंबर पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, एंड ऑल दीज प्रोसीजर, मतलब ये सारे प्रोसीजर
I used to perform. Non-cash transaction की बात करूं, there is no change. We'll not discuss that. Then companies register with RBI. अगर मैं ये NBFCs and all ये सारी इसी की बात करता है. पहले एक ही क्लॉज था, 4 क्लॉज इसमें आ गए. We'll discuss one by one. The clause B talks about whether the company has conducted NBFC or housing HFC activity without a valid COR. Very rare circumstances, बहुत ही rare होते हैं, right? And RBI, HFC, they are very strict in this area, right? आपको भी इंश्योर करा है. ऐसा नहीं है कि भाई क्लाइंट ने शुरू करते बोला आता रहेगा वो तो मैं तो धंधा शुरू करूँ, धंधे के लिए नहीं रुकूंगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू नीड टू कंसल्ट विद द क्लाइंट और बोलना पड़ेगा जी प्रॉपर कंप्लायंस वगैरह के साथ चलो तभी बात करेंगे आगे. और फिर भी नहीं मानता, यू गाइस नीड टू रिपोर्ट. देन आरबीआई एंड एचएफसी विल टेक केयर अबाउट दोस पीपल, राइट. देन नेक्स्ट बात करें हम सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कमेटी, जो कि डिफाइंड है आरबीआई के रूल्स वगैरह में. whether it continues to file the criteria of CIC, and in case the company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. अगर आपकी कोई CIC है, नेक्स्ट वाला क्लॉज आपके ग्रुप में भी बात करता है, डी क्लॉज, और सी क्लॉज आपके जो ऑडिट क्लाइंट है उसकी बात करता है. अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आरबीआई रूल्स में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो वो कोर इन्वेस्टमेंट कमेटी के कि भाई वो जो क्राइटेरिया है वो पूरे थ्रू आउट द ईयर फुलफिल करे या नहीं करे, या कोई एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन पूरी इंश्योर हुई है नहीं है, दैट यू गाइस नीड टू रिपोर्ट. है moving on to next point, this is a new clause which I would like to discuss also in line with SA 570. SA 570 is going concern. तो और एक और क्लॉज आएगा इसके बाद मटेरियल अनसर्टेनिटी का भी, तो आपस में जुड़े हुए हैं वो क्लॉजेस. ये वाला क्लॉज बात करता है कि कोई कैश लॉसेस हो, राइट, कोई कंपनी का कैश लॉसेस है ड्यूरिंग द ईयर, तो कैश लॉसेस तो डिफाइन कर नहीं रखा कहीं पे भी, नाइदर इन इंडिया, नाइदर इन ईएस, नाइदर इन 2013 कंपनीज एक्ट. तो आपको डिटरमाइन करना. आप कैश लॉसेस में देखो, एक जनरल सिचुएशन होता है, जैसे मैंने कई लोगों से जिनसे भी डील करता हूँ बोलता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है ना वही उनके लिए कैश फ्लो है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नीचे भी और कई चीजें आती हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट में आती हैं, फाइनेंसिंग में आती हैं. तो यू गाइस नीड टू इवैल्यूएट केयरफुली. अगर मैं अपनी बात करूं तो कैश लॉसेस ये है कि पीबीटी उठाओ, प्रॉपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या व्हाटएवर, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया. ये मैं बात करूं इंटरेस्ट ड्यू वर्सेस पेमेंट का जो भी है डिफरेंशियल वगैरह हो गया उसका एडजस्टमेंट. तो मैं बात करूं कि रियल कैश टर्म में जो प्रॉफिट या लॉस है वो डिटरमाइन करना. एंड इफ कंपनी स्टिल इन कैश लॉसेस देन वी गाइस नीड टू रिपोर्ट, राइट. If you can see fourth bullet point, it is there कि भाई कोई डेफर्ड टैक्स का हो, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस हो कि भैया आपके क्रेडिटर में या डेटर में फॉरेक्स के कुछ आइटम है, एक्सपोजर है, उन पे गेन या लॉस हुआ है और वो जब तक रियलाइज नहीं हुआ तब तक आप उसको कैश लॉसेस वगैरह के लिए एडजस्ट आप कर सकते हो. या आपने कोई डेरिवेटिव या कोई इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, उनका गेन लॉस, नोशनल गेन एंड लॉस है, वो भी आप कैप्चर कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. वेरी फ्यू केसेस, लेकिन जहां पे भी अगर हुआ है तो आपको उसको तह तक जाने की जरूरत है. इट्स नॉट लाइक कि भाई उसने तो रिजाइन कर दिया, मेरे पास असाइनमेंट आ गया, मैं करूंगा, राइट. आपके सारे प्रोसीजर फॉलो करिए, कंसेंट लेटर वगैरह वो सब देखिए, कोशिश करिए जानने की क्यों रिजाइन करा था, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई गलती चीज हो, देयर आर मेनी सिचुएशन जहाँ पे ये होता है कि भाई कैटर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैटर नहीं कर पाता ऑडिटर कई बार, मतलब या मतलब और क्लाइंट को एक्सपर्टाइज चाहिए होता है, या क्लाइंट को ये चाहिए होता है कि नहीं यार तुम्हारा एक्सपोजर उतना नहीं है, नाउ वी आर ग्रोइंग बिग, या हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, या कंप्लायंसेस भी हमें दसों जगह से इंश्योर करने, वैसी भी सिचुएशन हो सकती है. बट डू इनको एट दिस, राइट, एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा ये भी चीज इंश्योर करनी है. We talk little about this in when we discuss about the cash flow. It says material uncertainty, right? It is very important thing जो कि हम बात ही नहीं करते. अब मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसी हो सकती है? मैं अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, आप बिजनेस चला रहे हो, राइट, बिजनेस में आप फाइनेंशियल बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो. इफ यू गाइस रिमेंबर अकाउंटिंग पॉलिसी में एक बेसिक अजम्पशन है दैट इज अ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल बनेंगे, लेकिन गोइंग कंसर्न का कुछ अता पता ही नहीं है. कंपनी के पास सब्सिक्वेंट, मतलब मैं बात करूं कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंसेस ही नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटी चुकाए. सिंपल अगर मैं बात करूं, करंट लायबिलिटी ज्यादा है करंट असेट से, राइट,
टर्म लोन या जो भी है वो बहुत ज्यादा है, ड्यू होने वाले हैं, आपको साफ दिख रहा है नेक्स्ट 1 ईयर में पे ही नहीं कर पाएगा एंड ऑल, राइट। कोई सेल्स ऑर्डर नहीं है हाथ में, या प्रोडक्ट जिसमें वो डील कर रहा था वो ऑब्सोल्यूशन हो गया है उसका, या रॉ मटेरियल जो उसको चाहिए था अपना प्रोडक्ट बनाने में उसके भाव भाव बढ़ गए हैं, या वो रशिया या यूक्रेन से आता था और अब बैन हो गया, या चाइना से आता था अब बैन हो गया। थिंक ऑफ ऑल दो सिचुएशन, राइट। गोइंग कंसर्न का प्रॉपर असेसमेंट कीजिए, देखिए मटेरियल सर्टेनिटी क्या कोई सिचुएशन है या नहीं, अगर कोई सिचुएशन होता है उसको रिपोर्ट कीजिए। आई कैन टेल यू देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गाइडेंस नोट, इम्प्लीमेंटेशन गाइड कह लो, एजुकेशन के मटेरियल कह लो, इन SF 570, अगर आप इंस्टीट्यूट के भी साइट पे जाके देखेंगे वहां पे सिचुएशन दे रखी है अलॉन्ग विथ FAQ फॉर्म, एग्जाम्पल की कैसी कैसी सिचुएशन में ये होता है। ये क्या होता है, हम कई बार इसको मिस कर जाते हैं अनइंटेंशनली, तो अब इसको मिस नहीं करना है आपको, क्योंकि people will after our life, right? Banks and other financial institution या authority किसी की भी बात कर लो, they will be after our life। तो आपको वही सारी चीजें देखनी है, रेशियोज वगैरह आपको देखना है, गोइंग कंसर्न का देखना आपको एडिकेट कैश बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है एडिकेट, अगर कोई आप सब्सिडरी की बात कर रहे हैं तो एडिकेट फाइनेंशियल सपोर्ट होल्डिंग कंपनी का नहीं है या नहीं है, वो आपको इंश्योर करना है। होल्डिंग कंपनी भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने लायक है या नहीं है, वो भी आपको इंश्योर करना है। तो यू गाइस नीड टू थिंक अबाउट इट इन दिस गोइंग कंसर्न related matter. Next point is related to CSR. If you guys remember a year back CSR के rules वगैरह में changes हुए थे। पहले तक क्या होता था कि भाई अप्रोप्रिएशन होता था, प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन होता था, बट गवर्नमेंट बिकेम स्ट्रिक्ट, बोले भाई कब तक अप्रोप्रिएशन चलाओगे, इसको कंट्रीब्यूट भी करो। फिर जैसे मैं अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड वाली बात करूं, उसी तरह इसी CSR में भी कंपनी ये CSR रूल्स में भी ये क्लॉज ला दिया कि भाई 6 महीने तक अगर आपने पैसा कहीं काम में ही नहीं लिया तो उसको उस फंड में जमा कराओ, राइट। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट, तो उस प्रोजेक्ट में जमा कराओ एंड सो ऑन। तो इसी के रिगार्डिंग हम कारों में भी क्लॉज डाल दिया कि ये भी आप CSR का इंश्योर करो। एट द सेम टाइम कंपनी को भी डिस्क्लोजर देना ही है, उसका विल डिस्कस अबाउट इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन शेड्यूल 3 कि क्या क्या देना है, वो भी देना ही है साथ में, और ऑडिटर को भी अपनी कारो रिपोर्ट में रिपोर्ट करना ही है। We discussed initially regarding CFS का रिपोर्टिंग। सो CFS के रिपोर्टिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पे आप क्लाइंट कर रहे हो, आपका क्लाइंट की होल्ड, आपकी क्लाइंट की सब्सिडरीज हैं, JVs वगैरह हैं, वहां आपको इंश्योर करना है कि भैया अगर कोई केवीएट कोई रिपोर्टिंग हो रखी है कारों की रिपोर्ट में, तो वो चीजें आपको यहाँ पे वापस ब्रिंग इन करनी है। अगर मैं सिंपल नेम एंड लैंग्वेज में कहूँ तो आई हैव समराइज्ड इन थर्ड बुलेट, दैट इज क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क अगर हैं तो वो आपको ब्रिंग इन करने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और डाल रखा है जी, प्रोफेशनल जजमेंट लगाओ, नो डाउट लगाना पड़ेगा, बट इंश्योर कि अगर एडवर्स है तो एज इट इज ले आओ। एंड एज आई सेड, कारो कंपनीज एक्ट से निकल के आ रहा है, वो मटेरियलिटी नहीं जानता, मटेरियलिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे जानते हैं, राइट। तो इट विल ऑलवेज बी रिकमेंडेड सेफर फॉर अस कि भी हाँ वहाँ एडवर्स रिमार्क आ रहा है, यू नीड टू ब्रिंग इन दोज एडवर्स रिमार्क इन योर Caro report to consolidated financial statement. Yeah. So guys, this is what about the Caro. We will discuss about next presentation, that is on schedule 3. So before that, if you have any query questions, please feel free to ask. You can chat. You can use our chat box or whatever. Like someone can unmute you guys too. सी आपको मटेरियल सब, मैंने भी कोई अपनी तरफ से मटेरियल नहीं बनाया, इट्स अ सिंपल रूल। हमारे प्रोफेशन में सिंपल रूल है, हमारे जो भी लिटरेचर है, गाइडेंस नोट है, नोटिफिकेशन आया कारो 2020 का, गाइडेंस नोट आया, राइट। प्रैक्टिकल हमने जो चैलेंज देखे, मैंने देखे, आई ट्राइड समराइजिंग है, राइट। एंड एम इज इस सेशन का, मेरा देखो मैं बताऊं, मेरा सेशन का ये एम है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना जो भी आई गेन द नॉलेज वो आप लोगों के साथ शेयर करना, चैलेंजेस हैं वो शेयर करना, बिकॉज इट इज ऑल टुगेदर न्यू थिंग, राइट, जो कि आप फर्स्ट टाइम डील करोगे। अगर कोई भी दिमाग में आपके क्वेरी क्वेश्चंस वगैरह निकल के आए, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस। बट जो सिचुएशन, आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जो सिचुएशन कुछ सालों पहले थी वैसे नहीं है।
अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, पाप का भागीदार अगर कहीं हुआ तो हमें भी बनाया जाएगा, कि हमें भी ये बोला जाएगा कि नहीं जी, आपका ही प्रोफेशनल कहीं ना कहीं स्केप्टिसिज्म मिसिंग था। तो अनटिल अनलेस अगर हमने हमारे प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर कर रखे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं। और अगर नहीं हो रखे हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग है, दिख रहे हैं कि भाई देखो जी, ये चीजें बोल रखी है इन गाइडेंस नोट वगैरह में या स्टैट्यूट में, ये बोल रखा है, और वो चीज आपने नहीं करी या डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, देन वी विल बी इन ट्रबल। Yep. Okay. So, moving on to Schedule 3. Just give me a second. Okay. So, I hope all you aware कि Schedule 3 is a schedule which talks about format of the financial statement, companies का financial statement का format and bare minimum disclosure. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर कैसे, कहाँ से गवर्न होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनीज एक्ट ने थ्रू शेड्यूल 3 जो मैंडेट कर दिए। शेड्यूल 3 इज फॉर द डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, पार्ट 2 जिन पे इंड एस एप्लीकेबल है, एंड पार्ट 3 इज फॉर एनबीएफसीज एंड ऑल। So here my slide contains about part 2 because I recently finished the part 2 जो जिन पे इंडेस है, but trust me, part 1 में भी largely वही changes है। Apart from इंडेस एएस जो थोड़ा बहुत डिस्क्लोजर वगैरह का changes है, considering इंडेस और एएस में जो रेफरेंस है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं है। सब्सटेंस वही है जो आपके शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में है, वही सब्सटेंस आपको बाकी में मिलेगा, फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। Before I will start this presentation, I would like to brief कि ये जो Schedule 3 के चेंजेस है ना, ये पहले देखो कारों के चेंजेस है, ठीक है, फिर Schedule 3 के चेंजेस है। अब कारों के चेंजेस तो ला दिए और बोला कि ऑडिटर को रिपोर्ट करो। अब ऑडिटरों का भी पॉइंट ये है कि भैया हम तो रिपोर्ट कर देंगे, बट जहां हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्लाइंट की जिम्मेदारी, बोर्ड की जिम्मेदारी एंड ऑल, तो ये सारे जो क्लॉजेस हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले उनको उन चीज के लिए जिम्मेदार तो बनाओ, राइट। तो ये एक जरिया लाएगी, ठीक है जी, बात सही है आपकी भी, कि ये सारी चीजें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हों, कई सारी चीजें जो कारों में आ रही है पैरेलली वो चीज भी हों, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा और चीजें डाल दी, विल डिस्कस अबाउट दैट। फैंसी चीजें मैं बोल सकता हूँ कि एजिंग एंड ऑल वो सब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हार्डली फाउंड नो, सो आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, लाइक मैंने यूके एफआरएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं, या मैं बात करूँ यूएस गैप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखे हैं, या सैग पीसीओबी एनवायरनमेंट में जो होते हैं वो देखे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्शन में मैंने कभी एजिंग नहीं देखी। तो इंडिया इज यूनिक, में भी कहीं और हो सकते हैं, फ्रांस एंड ऑल, सिंगापुर एंड ऑल, वहां सब हो सकते हैं, बट मैंने नहीं देखी। मेनी कंपनीज डू डिस्क्लोज दीज थिंग्स, बट नॉट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे डू डिस्क्लोज एज अ पार्ट ऑफ देयर एनुअल रिपोर्ट, या और कहीं सेक्शन वहां पे हो, राइट। बट इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं आती। अब आ ही गई है तो आप लोगों को केयरफुली उस चीज को डील करना पड़ेगा, right? So it comes effective, very equal to what is applicability for CARO 2020. Then लीज की अगर मैं बात करूं, because as I discussed initially also, जो लीज का स्टैंडर्ड है NES 116 जो है, which is bit different with the AS का लीज का जो स्टैंडर्ड है, it talks about ROU, right of use asset and lease liability। तो यहाँ पे यही बोला गया कि मेजर चेंजेस बोल सकते हैं कि पहले ROU लीज लाइबिलिटी कहीं छुप जाता था, now companies need to present on the face of the financial statement itself, so that is a balance sheet। then उसके बाद में major changes, as I just brief you, trade receivable, trade payable, CWIP की I will discuss in detail little bit about capital work in progress, CWIP की एजिंग वगैरह देनी है, या जो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है उनकी एजिंग नहीं है। इसके पीछे थीम क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ये सारी चीजें मांगी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट और डाल दी। सो आपको 11 तरह के रेशियोज हैं जो कि डिस्क्लोज करते हैं। वो 11 तरह के रेशियो क्या है, नॉल वो गाइडेंस नोट में सब कुछ दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले भी दे रखे हैं, बट जो 11 रेशियो हैं वो भी आपको डिस्क्लोज करने हैं। और साथ ही साथ रेशियो में अगर वेरिएशन है मोर देन 25%, तो यू गाइस नीड टू गिव द डिस्क्लोजर फॉर दोज वेरिएंस। दिस इज समथिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना पड़े, राइट। वी हैव सीन दैट excuse me, we have seen that previously in
एनुअल रिपोर्ट या कोई और रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट की, बट आई नेवर सॉ दिस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो दिस इज समथिंग न्यू कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आ रही है. देन इसके बाद में मैंने लिंक देने की कोशिश करी है. आप आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद द मैनेजमेंट कमेटी फॉर शेयरिंग विद यू, फर्दर शेयरिंग विद यू गाइस. ओके, विल टॉक अबाउट क्लॉज बाय क्लॉज. क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं आई इसमें. फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग अ ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल की जी अब एजिंग देखनी है. अब जरूरत क्यों पड़ी इसकी भी, कुछ सोच समझ के ही पड़ी होगी. देखो, नेक्सस बैठाने की कोशिश करते हैं. शुरुआत में मैंने बोला आपको कि सारे चेंजेस के पीछे थीम ये था कि लोन, बैंक का लोन, रिसेंट फ्रॉड से लर्निंग वगैरह, और एक्सचेकर का पैसा बर्बाद हो रहा है, उन सब चीजों को. तो अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है वो किसके, उसके ऊपर फर्स्ट चार्ज क्या होता है उस चीज का, डेटर होते हैं आपके, इन्वेंट्री वगैरह नॉल होती है. एंड इमेजिन अ सिचुएशन कि जहाँ पे आपके डेटर 3-3, 4-4 साल पुराने हैं, जिनका आता पता ही नहीं है, बैठे हुए हैं, और क्लाइंट भी प्रोवाइड फॉर नहीं कर रहा, राइट ऑफ नहीं कर रहा, बैठे हुए हैं जी, आ जाएंगे जी. और ऑडिट प्रोसीजर वाइज क्या हो रहा है, कंफर्मेशन ला दी जाती है आपको, इमेजिन, राइट. या आप बोलते हो हाँ जी गया हुआ था, 3 साल पहले गया था एंड ऑल, आप भी तसल्ली अपने दिल को दे रहे हो कि हाँ जी हो जाएगा. बट इमेजिन वो पुराने इतने. तो यहाँ पे पर्पस ये है कि भाई डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. अगर इमेजिन डेटर के, अगर हम आपके मान लीजिए कोई ऐसा क्लाइंट, वैसे तो मैं नहीं कहूंगा हो, बट मान लीजिए आपका क्लाइंट हो जिसका 80% आपका डेटर मोर देन 3 इयर्स या 2-3 इयर्स वाली बकेट में पड़ा है, वहां पे बैंक को सोचने की जरूरत पड़ेगी. और इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन मांगी कि भैया क्या है, डेटर में है क्या, राइट. एक कॉमन मिस्टेक जो लोग बाग करते हैं, देखो इसमें एक चीज है ड्यू डेट, राइट. जैसे डेटर है, हम क्या करते हैं, कोई इनवॉइसिंग, कोई हमने सेल्स करी, सेल्स में टर्म दे रखा है कि भाई 6 महीने बाद पैसा देगा, 3 महीने बाद देगा, एज द केस में भी. तो यहाँ पे वो एजिंग जो मांगी है वो ड्यू डेट से मांगी है, इनवॉइस डेट से नहीं मांगी, राइट. तो एक ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है. अगर ड्यू डेट कहीं मेंशन नहीं है, प्रोसेस में नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, तो आप इनवॉइस डेट से दे दो, इतना लेवरेज दे रखा है. बट लेकिन ड्यू डेट है तो आपको ड्यू डेट से देनी है. मैंने प्रैक्टिकली ये सिचुएशन डील करी जहाँ पे ड्यू डेट तो थी, बट क्लाइंट का MIS रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, IT स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं डेवलप हुआ, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, राइट. कि नहीं हुआ कि भी वो एजिंग दे सके, तो वो एस्केप ग्राउंड नहीं है कि चल भाई तेरे पास नहीं है ड्यू डेट से तो तू मुझे इनवॉइस डेट से दे दे, हम काम चलाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड डोंट रीड गाइडेंस लाइक दैट. गाइडेंस में लिखा हुआ है, गाइडेंस ये बोलता है जब ड्यू डेट ना हो तब इनवॉइस से दे दो, बट जब ड्यू डेट हो तो ड्यू डेट से ही देनी है, राइट. तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. देन वन मोर थिंग जो आप आई ऑल्सो लर्न, जब जब बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए लाइक TCS, इन्फोसिस, why again and again I am repeating these names because these are the leader. They used to get the awards every year from the several authorities, institute के भी आपके अच्छे financial बने and all. Apart from that they have good corporate governance, right. बाहर भी listed है, SEC listed है US में, which is one of the stringent body जो कि इंश्योर करती है. तो that's why I'm saying. तो अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या कर रखा है, एक कॉलम डाल रखा होगा अनड्यू का. सिचुएशन हो सकती है कि भाई आपने मान लीजिए कोई मार्च 22 में इनवॉइसिंग इश्यू करी हो, राइट. ड्यू डेट ही उसका 6 महीने बाद हो, तो एजिंग में क्या आएगा, तो एक कॉलम इंसर्ट कर दिया भाई नॉट ड्यू का, राइट, कि ड्यू ही नहीं हुआ वो अमाउंट. तो इस तरह से आप उसको, ऐसा नहीं है कि ये यही है, आप उसको हल्का सा चेंज भी कर सकते हो, बट थीम यही निकल के आएगी. इंश्योर करिए कि आपका ये जो डिस्क्लोजर पीछे दे रहे हैं, बैलेंस शीट में जो नंबर है मैच कर रहा हो. ऐसा नहीं कि भाई वो किसी और दिशा में जा रहा हो या डिफरेंस हो मटेरियल, उधर कोई और डिफरेंस. इट शुड नॉट बी लाइक दैट, राइट. देन केयरफुली आपको ये भी देखना है कि भैया अगर मैं बात करूँ पॉइंट नंबर 3 की क्रेडिट इम्पेयर्ड, राइट, उसको प्रॉपरली असेस कीजिए. मैं अगर बात करूँ कि जी क्रेडिट इम्पेयर की मतलब जैसे 3 महीने का आपका वो था, ड्यू डेट था, राइट. 3 महीने नहीं दिया, 6 महीने नहीं दिया, 8 महीने नहीं दिया, बट आप ये जज कर पा रहे हो कि हाँ वो बैड डेट नहीं होगा या बैड नहीं है, बट क्रेडिट इम्पेयर्ड है, तो अकॉर्डिंगली उसको क्रेडिट इम्पेयर्ड दो. क्रेडिट इम्पेयर्ड अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ, दो इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट, बट अगर मैं बात करूँ कि डिले हो गया, राइट, जो उसने कमिटमेंट था या ड्यू डेट पीरियड था उसमें पैसा नहीं है, लाइक दैट. देन इन द सेकंड पॉइंट यू विल सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क. इसको शॉर्ट में हम SICR भी बोलते हैं. जनरली वी फाउंड इन NBFCs एंड ऑल, जहाँ पे क्या होता है जैसे बोरोवर हो गया कोई, ठीक है, बोरोवर की एजिंग बकेट हो गई कि भाई एक इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई, या और कोई सिचुएशन हो गई, राइट. जैसे
जिस असेट के लिए दे रखा था उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, तो उन सिचुएशन में ये वाली कैटेगरी में भी आपका डेटर आ सकता है, राइट। देन अगर बुक से मैच करना, आप बोलोगे कि जी बुक्स में तो नेट दिखाते हैं, यहाँ पे कोई प्रोविजन वगैरह का हमें नहीं दिख रहा, नो प्रॉब्लम, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप एक लाइन इंसर्ट कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए कि भैया ये तो ग्रॉस की एजिंग है, ये प्रोविजन है, ये नंबर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई आईटी कंपनीज में आई हैव सीन, क्योंकि बिलिंग का लैग होता है, 1 मंथ 2 मंथ्स का लैग होता है, जिस सर्विस देते हैं सर्विसेज के 1-2 महीने में होता है, तो अनबिल्ड का भी सिचुएशन हो सकता है, राइट। तो अनबिल्ड भी आप नॉट ड्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। प्लीज इंश्योर कि भैया जो नंबर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे रखा है और जो आप एजिंग बकेट में डिस्क्लोज कर रहे हो, मैरी कर रहे हो, आपस में से इधर उधर ना भटक रहे हो। Then moving on to next point, capital work in progress as well as intangible asset under development, very important। मतलब प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं बात करूं, मतलब मैं मेरे करियर 12-13 साल में मैंने कई सिचुएशन यहाँ पे देखी है, जहाँ पे क्या सीवे पड़े रहते हैं, क्या कर रहे हैं जी, ये मशीन बना रहे हैं हम, और 5 साल से वो मशीन बन ही रही है। सी इमेजिन, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज होती है, सब कुछ होता है, वो मशीन की जिसकी ओरिजिनल लाइफ 5 साल 5 साल की होगी, उसको बनाने में ही 5 साल लग जाए, तो डेफिनेटली ऑब्सोल्यूशन का रीजन है। चाहे क्लाइंट आपको कितने ही रीजन दे, देयर में भी सिचुएशन, मैंने मतलब प्रैक्टिकली डील करी, मुझे क्लाइंट ऐसे वियर्ड सॉल्यूशन देता है, नहीं जी ये तो लोहे के भाव तो बढ़ ही गए, आप ऑब्सोल्यूशन की क्या बात कर रहे हो, राइट। मैं उसको बोलता हूँ भाई, लोहा लक्कड़ एक तरफ है, जो मशीन की टेक्नोलॉजी थी, मोटर थी, वट एवर बी द थिंग, राइट, वो तो ऑब्सोलेट हो ही गई। तो ये सारी सिचुएशन है, इन सिचुएशन के लिए डिस्क्लोज करने के लिए हमें बोला गया है, राइट। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि भाई फर्स्ट चार्ज तो कंपनी का ये हो गया, लोन लिया कि भाई डेटर वगैरह हो गया, सेकंड चार्ज वगैरह प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीजें हो सकती हैं, राइट। ये हो सकता है कोई टर्म लोन दिया हो मशीन को बिल्ड करने के लिए, प्लांट को बिल्ड करने के लिए, अगर वो सीवीपी पड़ा है आपका कई सालों से, कोई मूवमेंट ही नहीं है, राइट, ऐसे ही पड़ा है, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो इसका पर्पस ये है, अगर मैं ये सीवेप और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट को 3 ब्रॉड पार्ट में डिवाइड करूं रिपोर्टिंग का, तो पहला पार्ट ये है, फर्स्ट, what is the original plan of the management, right? ओरिजिनल प्लान यू कैन सी, अगर कोई बोर्ड मीटिंग में अगर कोई डिस्कस हुआ हो, या बैंक को सबमिट करा हो, या कहीं और सबमिट करा हो, कस्टमर को, किसी को भी, या कहीं पब्लिश करा हो, वो पहले, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ओरिजिनल प्लान कंपनी का था क्या, 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में, सो ऑन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। बट वो देखिए, और भी तरीके हो सकते हैं देखने के, मान लीजिए वेंडर से जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं टाइम पीरियड डिफाइन कर रखा हो। तो फर्स्ट थिंग यू गाइज नीड टू इंश्योर इज कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्लान, राइट। उसके बाद उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, राइट। प्रोग्रेस में बात करूँ भैया, हाँ ठीक है, ओरिजिनल प्लान था, ओरिजिनल प्लान से ऊपर गया नहीं गया, राइट। अकॉर्डिंगली यू गाइज नीड टू गिव द एजिंग, राइट। यही एक क्लॉज में मेंशन कर रखा है कि एजिंग क्या है उसका। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कोई सीविप का प्लान चला तो लेकिन सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड का मतलब टेम्परेरी सस्पेंशन ऑल्सो, परमानेंट सस्पेंशन ऑल्सो, राइट। टेम्परेरी सस्पेंशन है तो वो भी देखना पड़ेगा, क्यों दे दिया, क्या दे दिया, ऑब्सोल्यूशन हो सकता है उसमें भी आपका, राइट। तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में फ्यूल सी द बी क्लॉज, कि जो सी वेब जिसका कंप्लीशन ओवरड्यू है, राइट, और या फिर जिसकी जो पहले जो डिफाइन कॉस्ट करी थी वो ओरिजिनल प्लान से बढ़ गई है, तो वो भी आपको उसका फ्यूचर में कंप्लीशन वगैरह कब क्या है, वो सारा भी चीज आपको देनी पड़ेगी। सो जब मैंने ये स्लाइड में इनिशियली शुरू किया था, तो मैंने आपको ये बोला था आपको ओरिजिनल प्लान देखना है। ओरिजिनल प्लान देखते टाइम आप उसकी जो बजटेड कॉस्ट है, कि भाई एस्टिमेटेड कितनी आ सकती है, यू गाइज में थिंक कि भाई जब शुरुआत में ही थोड़ी ना डिटरमाइन हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट। बट बजट भी ये कोई नाम की चीज होती है, मोटा मोटा पता पड़ता है कि भैया ये बिल्डिंग, ये प्लांट इतने लाख इतने करोड़ में बन जाएगा, राइट। थोड़ा बहुत प्लस माइनस इन्फ्लेशन इम्पैक्ट वो सब चीज हो सकता है, वेरी वेल अंडरस्टूड, जस्टिफिकेशन भी हो सकता है, बट ऐसे हेवाई नहीं होना चाहिए। पता पड़े इनिशियल एस्टिमेट थे 2 करोड़ के, और 10 करोड़ तो लग चुके हैं अभी तक उस पे, और उसका कोई अता पता नहीं है कि कब कैपिटलाइज होगी, कब शुरू होगी, लाइक दैट थिंक दो सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। और यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, जहाँ पे लोन, बैंक का लोन हो, टर्म लोन हो, ये सिक्योरिटी दे रखी हो, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। देन
we discuss about the बेनामी प्रॉपर्टी इन कारो ऑल्सो, राइट? कारो में जब हमने पहला क्लॉज डिस्कस करा था वहां पे बेनामी प्रॉपर्टी आ रहा था, वहां पे वही हमने डिस्कस करा था कि बेनामी प्रॉपर्टी का कोई कोई मैटर तो नहीं चल रहा कंपनी के अगेंस्ट अंडर द बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह में, या उसके अंडर जो भी रूल्स हैं, क्या प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी कौन है उसका, राइट? बुक्स में कैसे डील करा है, दिखा भी रखा है, नहीं दिखा रखा है, एंड ऑल वो सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है इसमें। और अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड एंड इफ विल रीड एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसेंटली जो भी आए ऑफ गुड कंपनीज, यू विल सी कि वहां पे भी अगर नहीं भी है ना कोई, तो भी डिस्क्लोज ये कर रखा है कि भाई देर इज नो प्रोसीडिंग्स या कोई इश्यू नहीं है अंडर बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ द कंपनी, राइट? तो गेट द same disclosed in the financial statement apart from taking this matter in the representation letter, right? पता पड़ा आपको भैया कहीं कोई निकल के आ गया, वो छुपा हुआ कुछ निकल के आ गया, then you guys will be in trouble. शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर्स, आई थिंक ये थोड़ा सा डुप्लीकेशन है, कई बार हम बोलते हैं ज्यादा ही हो गया है, तो ये वही वाला मैटर है। बिकॉज प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है जनरली आई हैव सीन की बोर्ड रिपोर्ट वगैरह में, उन सब में, एनुअल रिपोर्ट में आता है, राइट? या फिर फाइलिंग जो भी एमसीए वगैरह की फाइलिंग वगैरह वो आता है। बट यहाँ पे एक शेड्यूल 3 ने एक चीज और मैंडेट कर दी कि भैया वहां तो दिखाई रहे, आप एक काम करो, जो आपका शेयर कैपिटल वगैरह का क्लॉज आता है जहाँ पे आप सब कुछ दिखाते हो, वहां पे भी इसको डिस्क्लोज कर दो। तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मेट दे दिया उन्होंने, आप लोगों को भी इसमें डिस्क्लोज करना है। इफ यू गाइज रिमेम्बर, हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल का नोट देते हैं, हम लोग देते हैं 5% से ज्यादा किस किसका स्टेक है, मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या हुआ एंड ऑल, बोनस शेयर पिछले 5 सालों में दिया नहीं दिया एंड सो ऑन। अब उसी के साथ ये क्लॉज और जुड़ जाएगा आपका। So we discuss about the trade receivable. Now this point is talks about the trade payable. Same, बस वहां पे रिसीवेबल था, यहाँ पे पेबल है, सारी चीजें सेम है आपकी। सॉरी, बोरोइंग्स अगेन, मतलब शुरू ही हमने यही बोला था कि भैया ये सारे चेंजेस वगैरह ये सब ये गवर्नेंस मैटर्स हैं, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। सो रिपोर्टिंग वाइज वेदर द कंपनी हैज बोरोइंग, मतलब पहले तो ये देखना कि भाई कौन कौन सी बोरोइंग है, क्या क्या सिक्योरिटी वगैरह वो ली है, राइट? इफ यू गाइज रिमेम्बर, हमने कारो के सेकंड क्लॉज के भी पार्ट में ये चीज बोली थी क्वार्टरली रिटर्न्स की, वहीं यहाँ पे यही बोली गई है कि क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करिए नहीं करी, राइट? डिफरेंसेस है तो डिफरेंस का समरी तो आप कारो रिपोर्ट में तो कर रहे हो, कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोरिंग का स्केड्यूल या नोट या डिस्क्लोजर जो भी है वहां पे ये डिस्क्लोज करें। नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो थोड़ा सा इश्यू है, तो आपको उनको भी उस चीज में बोलना पड़ेगा कि भैया आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड देयर दे कैन प्रेजेंट द फैक्ट कि भैया कोई जेन्युइन इशू है या प्रोविजनल उन्होंने भरा था बाद में वो हो गया, मतलब बाद में फाइनल हो गया तो उन्होंने सबमिट कर दिया, इस तरह से वो अपना भी पॉइंट अपना प्रेजेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विलफुल डिफॉल्टर वी डिस्कस इन अ कारो, सेम, मतलब यहाँ पे भी कंपनीज को अपने डिस्क्लोजर में फाइनेंशियल के ये पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्टर की डेफिनेशन दे रखी है, मैं आपको बता रखा है क्या क्या कर सकते हैं उस पर, व्हाट वी डिस्कस की, चाहे आप बैंक से पूछ सकते हैं, आरबीआई की साइट पे जाके देख सकते हैं, आप पब्लिक डोमेन में वगैरह या कम्युनिकेशन में देख सकते हैं एंड ऑल। स्टॉक ऑफ कंपनीज, विल स्पेंड 5-10 मिनट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक ऑफ कंपनीज का, स्टॉक ऑफ कंपनीज का क्लॉज डाला है कि भाई कंपनी का, अगर कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन या बैलेंसेस कर रखे हैं विद दोस कंपनी व्हिच इज स्टॉक ऑफ फ्रॉम एमसी, राइट? तो आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल सिनेरियो जब ये आया बहुत हुआ, मतलब आई डील्ड विद माय क्लाइंट, क्लाइंट आल्सो केम टू मी कि जी कैसे करेंगे। तो पहला तो ये सिचुएशन था कि भाई कौन कौन से स्टॉक ऑफ कंपनीज है, तो फिर गो टू द एमसीए साइट, देयर यू विल फाइंड कि टाइम टू टाइम एमसीए पब्लिश करता है लिस्ट की कौन कौन सी स्टॉक ऑफ कंपनीज है, राइट? अब वो स्टॉक ऑफ कंपनीज में कितना डेप्थ में जाना है, 2, 5, 10 साल, दैट इज अ जजमेंट कॉल अगेन, राइट? अब दूसरा कि भाई उन्होंने पब्लिश करी, वो पब्लिश कैसे करी कि स्टॉक ऑफ कंपनीज का प्रिंट लिया, प्रिंट लेके कुछ साइन वाइन वो करा और वो सब चढ़ा दी साइट में। तो वो ये बोला कि भाई अगर नॉर्मल पीडीएफ नॉर्मल लिस्टिंग भी होती तो कंपनियों के लिए होता कि भाई अपना डाउनलोड करा, एक्सेल में डाला,
और पूरा वेंडर, कस्टमर, शेयर होल्डर जितना भी डेटाबेस है उससे वी लुकअप मार के कंपेयर कर लेते कि भाई कोई है नहीं है, ट्रांजेक्शन है नहीं है। बट वो एक चैलेंजेस आ गया। बट आई हर्ड रिसेंटली देयर आर मेनी आईटी कंपनी, टेक कंपनी जो कि ये डेटा प्रोवाइड कर देती है कि जी ये लिस्टिंग है स्टॉक ऑफ कंपनीज की। मतलब अब तक तो सर्कुलेट भी हो रखा होगा पब्लिक डोमेन पे कि जो स्टॉक ऑफ कंपनीज है उनकी लिस्टिंग क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि कंपनी की, जो आपका क्लाइंट है, जो कंपनी है, उसने जितनी भी कंपनीज के साथ डील करा है, राइट, उनमें से कोई स्टॉक ऑफ कंपनीज तो नहीं है, राइट। स्टॉक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज बाय द टेबल। आप बोलेंगे जी टेबल में तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग ही दे रखा है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। अगर आप, मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन भी हुआ है जो कि स्क्वायर ऑफ हो गया, जो कि जीरो हो गया ईयर पे, वो भी आपको इंश्योर करना है। अदरवाइज थीम ऑफ दिस रिक्वायरमेंट विल गो फॉर अ टॉस, क्योंकि ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर या और भी कोई डीलिंग है विद एनी कंपनीज, वो आपको पूरा देखना है, लिस्टिंग बनानी है, इंश्योर करना है स्टॉक ऑफ नहीं है। आई एम गिविंग अ सिचुएशन, वेरी वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन विच आई हैव सीन। क्या होता है कि इन 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 मैं आपको बोलूं, मैंने स्टार्टअप्स में देख रखा है जहाँ पे फ्रॉड्स होते हैं, राइट। कैसे फ्रॉड्स होते हैं कि कोई स्टॉक ऑफ कंपनी है, उसका नाम डाल दिया ब्ला ब्ला, ये कंपनी है, ठीक है, उसकी पूरी वेंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सब कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट उसका जब डाला, राइट, तो बैंक अकाउंट में जो बंदा फ्रॉड करा था उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, ठीक है, कि ये बैंक अकाउंट है। फर्जी बिल गए, मतलब जो सर्विसेज नहीं थी वो गई एंड ऑल। अल्टीमेटली पेमेंट वगैरह अप्रूव हो गए, पेमेंट कंपनी इसके नाम से, और पता पड़ा कि वो जो बंदा फ्रॉड करा था उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो ऐसी सिचुएशन पाई गई है। उसमें कई बार एम्प्लॉयज, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, फाइनेंस लेवल के एम्प्लॉय होती हैं, कई बार बड़े लेवल के भी होते हैं एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, राइट। तो ये जो क्लॉज है, इसके पीछे जो मुझे समझ में आती है थी वो यही है कि ऐसी ये सारी सिचुएशन ना हो, राइट। तो आपको भी केयरफुली देखना पड़ेगा उसमें कि मतलब पूरे जो भी हैं। और मैं बात करूं, आपको नहीं, आपको देखने से पहले आपको क्लाइंट्स को बोलना पड़ेगा अपने कि भैया तूने कुछ देखा है, नहीं देखा भाई ये स्टॉक ऑफ कंपनीज वाला, मतलब तू इंश्योर है। उनसे मैकेनिज्म पूछना पड़ेगा, भाई तू कैसे इंश्योर कर रहा है, हमें वो बता दे, राइट। अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट प्रोसीजर आपको बिठाने पड़ेंगे। We discuss about CSR reporting and a caro. Similar thing is here only. आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, क्या क्या करना है। मैं बात करूं, अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, कितना अमाउंट कंपनी को स्पेंड करना है, 2% ऑफ प्रॉफिट, वो जो भी 198 197 सेक्शन लेके जो भी कंप्यूटेशन आपको करना है। कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा, खर्च कितना करा, एक पहला पॉइंट तो कितना बनता है, दूसरा कितना करा, तीसरा कोई शॉर्टफॉल है तो, राइट। एंड इन बिटवीन आई वुड लाइक टू से कि अगर कोई एक्सेस है तो सीएसआर रूल के हिसाब से वो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू की सीएसआर कमेटी अप्रूव कर दे, बोर्ड अप्रूव कर दे एंड ऑल, राइट। तो एक्सेस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे शॉर्टफॉल की बात करिए, शॉर्टफॉल कुछ हुआ तो, राइट, पिछले सालों का भी कोई शॉर्टफॉल चल रहा हो, ठीक है, शॉर्टफॉल का कारण क्या है, देन उसके बाद में किस नेचर की सीएसआर एक्टिविटी परफॉर्म करी है, राइट। फिर कई बार ये भी होता है कि भाई सीएसआर अपनों के बीच में हो जाता है कि ठीक है भाई, अब पहले दूसरों का भला करने से पहले अपनों का भला करना। तो यही इंश्योर करें कि कोई सीएसआर रिलेटेड एक्टिविटी करी है और वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, राइट। कि भाई कई बार होता है, कई मैकेनिज्म है इंडिया में, ट्रस्ट बना लिया, कुछ भी कर दिया, ट्रस्ट के बेनिफिशियरी रिलेटेड पार्टी हो गए, तो वो चीज भी आपको केयरफुली देखनी पड़ेगी, राइट। देन उसके बाद में where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into contractual obligation, the movement of the provision during the year shall be shown separately. That is also one thing. Apart from that, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, सीएसआर रूल पे जाऊं, राइट, तो कई बार क्या होता है, कंपनीज ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करती है, कोई जो भी बॉडी होती है जो कि सीएसआर एक्टिविटी कर रखी है। तो इफ विल गो बाय सीएसआर रूल, देयर यू सी द रिक्वायरमेंट की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इंश्योर करना है, राइट। एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी सीए का रिक्वायरमेंट दे रखा है वहां कि इंडिपेंडेंट सीए से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी लेना है। और आपसे पहले ये चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी इंश्योर करनी है। तो डोंट फॉरगेट आस्किंग ऑल दीज थिंग्स एंड मैनी। और रूल्स यहाँ तक भी बोलते हैं
नॉट ओनली अबाउट द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, रूल्स यहाँ तक भी बोलते हैं कि भैया कंपनी जो कि CSR कंट्रीब्यूट कर रही है वो उसके खर्चे वगैरह उन सब चीजों को भी देखे, यहाँ तक भी पॉइंट है, राइट। तो यू गाइस टू नीड टू इंश्योर कि जहाँ पे CSR आपके आता है क्लाइंट पे और जहाँ पे इनको कंट्रीब्यूट कर रखा है वहां पे प्रॉपर मैकेनिज्म है या नहीं। रेशियोज वी डिस्कस अबाउट, 11 तरह के रेशियोज हैं, डिफरेंट 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 डिफरेंट। सो 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 इन रेशियोज पे काफी डिस्कशन मतलब हो सकता है, मतलब फ्यू ऑफ देम इज, पहला पॉइंट ये हो सकता है कि सारे देने, तो माय आंसर वुड बी यस। वाई यस? देखो कहाँ से निकल के आ रहा है ये शेड्यूल 3, ये भी कंपनीज एक्ट से निकल के आ रहा है। कोई चीज मैंडेट कर दी तो ये लॉ एक्ट का मैन है, आप दो जितना टू द एक्सटेंट है, नहीं है आप मेंशन करो, फॉर्मूले वगैरह वो सब मेंशन करो, राइट। दिस इज माय ओन ओपिनियन, इट्स नॉट लाइक स्ट्रिक्टली, मतलब यहाँ पे सब्सटेंस पूछा है, राइट। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली कि ठीक है जी गाइडेंस नोट में जो दे दिया वही एक लोहे की लकीर मान के अपन को करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। बट आपको उस चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या रेशियो है, किस चीज की वजह से रेशियो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेरिएशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 25% से ज्यादा है, उसका रीजन देना है। रीजन में भी ऐसे नहीं है हम जो CA फाइनल के एग्जाम में शीटें बढ़ते थे वैसे शीटें भी नहीं बढ़नी, बट एक जस्टिफिकेशन का रीजन देना है कि हाँ जी ये इस तरह से हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई डिड प्रैक्टिकली की जहाँ पे पिछले साल एक नई कंपनी थी रिसेंटली थे, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे, तो बट ऑब्वियसली उनके रेशियोज वगैरह में काफी वेरिएशन रहेगा। तो दैट इज अ कॉमन रीजन कि भैया पिछले बार कुछ था ही नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल पिछले बार बैलेंस ही नहीं था, इस बार बैलेंस आ गया तो वेरिएशन तो आएगा ही रेशियो, लाइक दैट, इस तरह के एग्जाम्पल हो सकता है। Then in Caro we discuss about the utilization of borrowed fund, right? Apart from that यहाँ पे एक चीज और मेंटेन मैंडेट कर दिया कि अगर आपने शेयर कैपिटल वगैरह है आपका और शेयर कैपिटल का यूटिलाइजेशन वगैरह है वो करें। एंड वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि ठीक है चलिए आगे करेंगे, हम इस पॉइंट की बात करते हैं पहले यूटिलाइजेशन वगैरह की, कि भाई कंपनी को कोई एडवांस लोन इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह है, ठीक है, वो मतलब मैं बात करूं ओके ओके एक नए सिरे से बात करते हैं इसमें। देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट विच कम्स ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड विच इज आल्सो हैव अ डायरेक्ट रिलेवेंस ऑन द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, राइट। क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या रिपोर्टिंग है, वो ये है कि कंपनी ने अगर अपनी किसी इंटरमीडिएट कंपनी को लोन दिया, सब्सिडरी एसोसिएट एंड ऑल, राइट, और उन सब्सिडरी एसोसिएट ने आगे लोन दिया या वाइस वर्सा, कंपनी को लोन मिला किसी सब्सिडरी या इंटरमीडिएट सब्सिडरी से मिला, राइट, तो देयर कंपनी नीड टू इंश्योर हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, राइट, और अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मैंडेट कर दिया कि डिस्क्लोजर में भी हो और ऑडिट रिपोर्ट में भी करे। और इसका रिक्वायरमेंट कहाँ से पनपा? इसका रिक्वायरमेंट पनपा कि क्या होता था पास के कुछ सालों में नोटिस किया गया कि ये जो फंड एम्बेजलमेंट के जो केसेस होते हैं, जो पैसा निकलता है वो ऐसे निकलता है, कॉम्प्लेक्स चेन होती है। कॉम्प्लेक्स चेन मतलब आपकी होल्डिंग कंपनी है, नीचे दसों सब्सिडरी है। यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा सेक्शन 287 को भी, टू सबसेक्शन 87 को भी, विच विच रेस्ट्रिक्ट कि जो चेन है मतलब किसी एक कंपनी की मोर देन 2 सब्सिडरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेप डाउन सब्सिडरीज एंड ऑल वहां पे रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो इसी चीज के लिए दे रखा है। उसके रूल्स भी हैं, राइट, उस रूल्स में कई एग्जेम्पशंस भी हैं, फॉरेन कंपनीज एंड ऑल वो सारे एग्जेम्पशंस भी हैं। तो कंसिडरिंग जो एक्सपीरियंस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस या जो रिसेंट फ्रॉड्स का वो ये हुआ कि क्या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरिंग बना के क्या होता था, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एंड सो ऑन, पैसा होल्डिंग कंपनी में लोन लिया, होल्डिंग ने आगे लोन दिया, आगे किसी और ने लोन दिया, लोन देते ही गए, उसका ट्रैक ही नहीं रहा, राइट, और पता पड़ा अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई और था उस फंड का। फिर ऊपर से एवरग्रीनिंग हो गई, फंड नहीं है, फिर एकदम से बम फूटा, राइट। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे अब ये मैंडेट कर दिया गया ये बताने के लिए कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरीज को लोन दिया एंड सो ऑन स्टेप डाउन सब्सिडरीज को दिया है, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी बताना पड़ेगा कि है कौन भैया। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करूं, एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है, नई सब्सिडरी खोली स्पेसिफिक पर्पस के लिए खोली है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं खोली है तो उसको ऑपरेशंस के लिए सेटअप करने के लिए फंड चाहिएगा,
देयर इज अ कॉमन सिनेरियो, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अनरीजनेबल बात है। लेकिन कोई मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कंपनी खुल रखी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का एम ही ये कि होल्डिंग से पैसा लो, सब्सिडरी में बांटो एंड ऑल, राइट। इस तरह की सिचुएशन हो, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रक्चरिंग क्या है, अल्टीमेटली पैसा जा कहाँ रहा है, वो पूरे ग्रुप के बेनिफिट में तो ही जा रहा है ना, कहीं पास ऑन होके ऐसे खूब सारा एक एक विशेष से सर्कल निकल के वो पैसा जा तो नहीं है। और उसी को ही आप अदर वे देखिए कि अगर कंपनी को पैसा मिला है इसी चेन से और कंपनी आगे अगर किसी को दे रही है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है कौन, right? ये यू विल सी दिस क्लॉज इन योर ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो, एज वेल एज आपको ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देना है। अपार्ट फ्रॉम जो हमने कारो में डिस्कस करा, कारो में हमने क्या डिस्कस करा, लोन किस पर्पस के लिए लिया है, यूटिलाइज किस लिए लिया है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं यूटिलाइज करा, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके अलावा ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। यू मे नॉट फाउंड इन इन ईच एंड एवरी कंपनी, बट जहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज है जहाँ पे ये स्ट्रक्चरिंग होती है, वहां पे आपको इंश्योर करना पड़ेगा। Yep, this is similar. I have covered in what we just discussed. Other disclosure quickly बात करें। Now अब coming दो slide में miscellaneous disclosure है जो क्या क्या देना है। I will quickly read out those. So first point is कि कंपनी ने जो लोन वगैरह लिया, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, whether the company has used the borrowing from the bank, financial institution for the specific purposes for which it was taken, right? The company should disclose the detail where they have been used. We have discussed that कि किस पर्पस के लिए यूज किया, राइट। फिर हमने कारो क्लॉज में डिस्कस करा था टाइटल डीड्स का, कि भाई ये फिक्स असेट वगैरह वो सब है, टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है भी या नहीं है, एंड ऑल दोज वर द थिंग्स। देन उसके बाद में disclosures shall be made where loan and advances in the nature of loan are granted to the promoter, director, KMPs and all, either severally or jointly। ठीक है, पता पड़ा भाई कंपनी है, कंपनी में अपने ही बंदों को लोन दे रखा है, ठीक है, दे रखा हो सकता है, मे बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी वगैरह, बट डिस्क्लोजर जरूरी है उसका, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। और स्पेसिफिकली मैंने, अगर इफ यू रिमेम्बर, कारो में मैंने बोला था कि जो रिपेबल ऑन डिमांड होता है, थोड़े से डेंजरस किस्म के लोन होते हैं, जब व्हेन दीज काइंड ऑफ लोन्स आर गिवन टू रिलेटेड पार्टी और केएमपी, डायरेक्टर एंड ऑल, प्रमोटर एंड ऑल, राइट। अब हमारा जिम्मेदारी यही है कि भैया हम रिपोर्ट करें, राइट। रिपोर्ट क्या करें हम, कितना लोन वगैरह दिया, कितना आउटस्टैंडिंग है, परसेंटेज ओवरऑल अमाउंट का कितना क्या है। देन we discuss, if you guys remember, we discuss about कारो में हमने कहा था चार्ज क्रिएशन, राइट। तो चार्ज क्रिएशन का भी, whether any charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period, detail and reason thereof shall be disclosed, right। मैंने आपको बता तो दिया कि भाई एमसीए पे से चार्ज वार्ज होता है, आपको देखना चाहिए वो सिक्योरिटी वगैरह उसके लिए, लेकिन चार्ज ही क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी सिचुएशन हो, राइट, चाहे बैंक का हो, कंपनी का हो, जानबूझ के नहीं करा हो, तो वो भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, जहाँ पे चार्ज क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है और चार्ज नहीं करा। देन द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द नंबर ऑफ लेयर, आई जस्ट डिस्कस कि अंडर क्लॉज सब क्लॉज 87 ऑफ सॉरी क्लॉज 87 ऑफ सेक्शन 2, जहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्ट कर रखा है लेयर्स ऑफ द कंपनी, मोर देन 2 लेयर्स नहीं होना चाहिए, वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे होल्डिंग कंपनी है, उसके नीचे सब्सिडरी एंड उसके नीचे सब्सिडरी एंड सो, राइट। इसके भी इफ यू विल गो इन अ रूल्स, जो कि कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ रेल रूट 2017, अगर जाके आप देखोगे वहाँ पे भी थोड़े बहुत रिलैक्सेशन दे रखे हैं। टॉकिंग अबाउट फ्यू रिलैक्सेशन इज, अगर आप देखोगे बड़ी कंपनी है उसकी बात करूं, आईटी, इन्फोसिस एंड ऑल, अगर आप उनकी बात करोगे, देयर यू विल फाइंड कि ओवरसीज में लेयरिंग काफी ज्यादा है, राइट। और कई बार ये होता है क्योंकि ये सारी कंपनियों ने रिसेंट कुछ 5-10 सालों में कई सारी ओवरसीज की छोटी छोटी कंपनियां एक्वायर करी है, तो उनका स्ट्रक्चर था, उनका ट्री था, फिर इनका स्ट्रक्चर था, तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे केविएट ये डाल दिया इन रूल्स में भी कि अगर लोकल गवर्नमेंट से यूएस, यूके, जिनकी भी कंट्री में एक्वायर करा, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी नहीं है। ये जो लेयरिंग रेस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ लेयर्स है, ये हमारे इंडिया के लिए है, राइट। तो वो केविएट भी डाल दिया एक चीज, तो you guys need to see carefully that too. Then moving on to next point, crypto is very much in fashion. Maybe few of you must have invested in that. तो आजकल कंपनियां क्रिप्टो में भी डील करने लग गई हैं, मतलब मैंने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट देखी नहीं है कोई, बट आपको अगर कोई गलती से दिख जाए तो आपको वो भी रिपोर्ट करनी है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई आपका
अरेंजमेंट मैं बात करूँ, अमालगमेशन, मर्जर एंड ऑल, वो सब कुछ हुआ है, दैट यू गाइस नीड टू डिस्क्लोज एनीवे। उसका डिस्क्लोजर, क्योंकि वो एक अपने आप में ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट, एक मैटर रहता है, तो एनीवे उसका डिस्क्लोजर जाता ही जाता है, राइट। Last point is, you will see in our audit report, we need to give a clause कि अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया है तो वो डिविडेंड इन लाइन विद द सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट है नहीं है, दैट कंपनी नीड टू डिस्क्लोज इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो एज अ बाय वे ऑफ डिस्क्लोजर, एज वेल एज हमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट में भी लेना है। तो yeah, so these are the matters, important matters, which will impact your reporting जब भी आप ईयर एंड के ऑडिट करोगे, कारो रिपोर्टिंग करोगे, शेड्यूल 3 वगैरह करोगे, these are the few things. So yeah, I'm largely done, and I hope I'm on time. We have 15 minutes with us. In case if you guys have any query, questions, or anything you want to discuss, please feel free. Any queries from any participant? I think आप सुनील जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, so it seems so. It seems so. that is okay. And any query, and I think सुनील जी, if you want, आप अपना मेल आईडी भी शेयर कर दीजिए, अगर कोई किसी मेंबर को कोई क्वेरी तो आपसे मेल पे भी कम्युनिकेट। Yeah, guys. So if you'll see my slide there, I mentioned my mail ID also. You guys can feel free to reach out to these mail IDs. Right. First one is mine, and I request Akash to share some mail ID who can circulate that person or anyone can circulate these PPTs to the participant. Helpful. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील जी से, अगर वो पीपीटी शेयर कर दे तो वील अपलोड दिस पीपीटी ऑन आवर वेबसाइट, तो एनीवन जिसको भी कोई देखना हो, कुछ देखना हो, तो हमारी वेबसाइट सीआईआरसी की वेबसाइट पे जाके एंड देन यू कैन पीपीटी से कुछ भी आपको देना हो तो। I receive one comment. Thanks, Ishu. मेरे को भी, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, so it's a mix of English and Hindi. It's English. Thanks for your comment. Yep. So done. I think. Thank you, guys. Thanks for attending. Audio facility available to put queries. You can raise hand. Pradeep sir, we'll just unmute you. Anyone from CIRC? Pradeep ji को unmute कर दीजिए। हाँ जी प्रदीप जी, आप अनम्यूटेड हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है प्रदीप जी, आ रही है सर। ये जो शेड्यूल 3 या कारो जो चेंजेज वगैरह लगातार मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, हर 6 महीने में आ रहे हैं। हाँ जी, Am I right? नहीं 6 महीने में तो नहीं आ रहे सर, एक बार ही आए, मुझे तो एक बार ही ध्यान है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड वगैरह कुछ चीजों पे आ सकती है। मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड आई थी जो मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट वाली बात कर रहा था कि ऑडिट रिपोर्ट में भी चेंजेस है रिगार्डिंग की कोई लोन एडवांसेस वगैरह कंपनी ने इंटरमीडिएट सब्सिडरी एंड सो ऑन को दिया, उनसे लिया, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है। बट इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, शेड्यूल 3 डिवीजन 2 वगैरह और बाकी डिवीजन के लिए वो इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ। अच्छा, ये जो स्मॉल कंपनीज वगैरह की जिनके की 1 करोड़ वगैरह का कोई टच कर जाता है, 1 करोड़ से ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जहाँ कारो लागू हो जाता है, तो यहाँ पे एक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि साहब ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है कि 23 से लागू हो रहा है कि अभी रुकना चाहिए, या मतलब जो भी है चीजें, और इसको मतलब क्या नाम से इन रियल कैसे क्या तैयारी करके इसको कैसे अपन इसमें प्रोफेशनल जो रिपोर्टिंग वगैरह जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। इसका कोई मतलब क्या नाम से कोई ऐसा आप लोगों ने कुछ
मतलब क्या नाम है चेक लिस्ट वगैरह कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट वगैरह की हो कुछ? सर चेकलिस्ट देखिए, मतलब चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूं, मैंने खुद की एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। और मैंने कोई नई चीज नहीं बनाई, मैंने भी गाइडेंस नोट देखा, गाइडेंस नोट से वही एक्सेल में प्लॉट कर लिए। जब हम ऑडिट करते हैं तो उनको पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ने में टाइम लगता है, फिर यूज्ड हो जाते हैं हम जैसे जैसे करते हैं, राइट। तो चेकलिस्ट बन सकती है, आई डोंट सी एनी चैलेंज। रिगार्डिंग छोटी कंपनीज एंड ऑल, देखिए जहां कारो एप्लीकेबल है, वी डिस्कस अबाउट एप्लीकेबिलिटी आल्सो, वहां तो एप्लीकेबल है, कोई एस्केप है ही नहीं, राइट। अब ये एक पॉइंट आ सकता है, देखिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ चुकी है, बहुत बहुत हद तक बढ़ चुकी है, हमें काम बहुत करना पड़ेगा। तो मैं, अगर आप मेरी पर्सनली बात करें, तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्लाइंटों से बात करूंगा, सबसे बात करूंगा, सबसे बोलूंगा कि भाई देख, इतने पन्ने भरेंगे बीट रिपोर्टिंग, बीट फाइनेंशियली, राइट। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ गई, आप भी समझो ये रिस्पॉन्सिबिलिटियां, आप भी कंप्लाइंट हो और हमें भी कंप्लाइंट करो, राइट। हमारे भी एफर्ट बढ़ रहे हैं, उसको फीस के नजरिए से भी दिखाओ कि फीस भी लगेगी। सी इट्स कंप्लायंस रिलेटेड थिंग, राइट। मेरा पर्टिकुलर सर, एक मिनट रोक रहा हूँ मैं आपको, सॉरी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है या जो मैं क्या नाम से स्ट्रेस डालना चाह रहा हूँ जिस बात के ऊपर, वो ये है कि फॉर एग्जांपल कारों में रिक्वायरमेंट है कि एमएसएमई से रिलेटेड जो भी ड्यूज वगैरह है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल। ठीक है सर? ऐसा तो कोई है नहीं सर। वेंडर है वो एमएसएमई है नहीं है, ये कई सारी जो चीजें हैं, अब इनको जैसे फाइंड आउट करने का वे हो, अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन करना है, हाँ, सब चीजें अगर हो एक प्रैक्टिकल वे में अपन चलें तो वो भी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। देखिए सर, कारों में तो नहीं है, बट एमएसएमई एक्ट जरूर बोलता है कि अगर कोई कंपनी का डीलिंग है विद एमएसएमई कंपनीज, ठीक है, तो उन एमएसएमई कंपनीज को पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस वगैरह, वो सब के बेसिस पे दो, राइट। तो वो अलग रिक्वायरमेंट है, वो कारों में नहीं है, वो भी देखनी पड़ेगी। और वो भी धीरे धीरे वो भी स्ट्रक्चर होती जा रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनीज को एमएसएमई की हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है, राइट। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है, वो सारा भी करना पड़ता है। तो सर वो तो अगेन मैं यही बात करूंगा कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, उसका भी कोई एस्केप तो है नहीं। तो देखना पड़ेगा, उसका भी आपको क्लाइंट से ही बात करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा, अपनी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन देखनी पड़ेगी। और अगर नहीं है, इफ क्लाइंट इज नॉट रेडी, यू नीड टू कंसिडर दिस ऑन योर रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर मैं आकाश बड़गोती जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यस सर। पहले क्या नाम से मुकेश कुशवाहा जी थे यहाँ पे चेयरमैन सीआईआरसी के, जहाँ पर आप अभी हो। उस समय उन्होंने क्या नाम से जैसे बैंक ऑडिट्स वगैरह अपना एक रूटीन जॉब होता है स्टेचुरी ब्रांच के लिए, उस समय उन्होंने क्या नाम से एक चीज डेवलप कराई कि किस तरीके से चेक लिस्ट वगैरह अलग अलग जो अपने बैंक ऑडिट्स में जो अलग अलग आइटम्स होते हैं वो कैसे कर सकते हैं। वैसे ही मेरा सबमिशन ये है कि सीआईआरसी के लेवल पे अगर क्या नाम से हम लोग को इस तरीके की चेकलिस्ट डेवलप करें जिसमें कि कंपनी जो क्लाइंटेज है उनकी ऑडिट करते समय हम ये सारी चीज़ों को, अगर मान लीजिए कई बार क्या कि हमारे जैसे जो छोटे ऑडिटर होते हैं जिनके पास कभी कभार कोई ऑडिट आती है तो हम लोग इतना उससे टच में नहीं होते हैं, और भी कई सारे अपने मेंबर्स हैं जो नहीं होते। तो इस तरह का अगर अपन डॉक्यूमेंट्स वगैरह डेवलप कराएं तो मेरे ख्याल से ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से बेटर होगा। और इसमें तो मैं तो जैसे मान लीजिए सीआईआरसी का एक लिमिटेड स्कोप है या उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट लेवल पे भी अगर मान लीजिए इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अगर हर मेंबर्स को प्रोवाइड कराया जाए तो ये जो आज की डेट में जैसे मान लीजिए कई सारे कॉम्प्लिकेशन जो जनरेट हो रहे हैं वो मेरे ख्याल से नहीं होंगे। डेफिनेटली सर, मैं योर सजेशन नोटेड एंड मैं अपडेट करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी लास्ट ईयर अपन से कंफर्मेशंस मांगी थी रिगार्डिंग द टूल्स, ऑडिट टूल्स, राइट। एंड वो उस पे वर्किंग चल रही है एंड प्रोबेबली मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट अपन को करंट ईयर में वो ऑडिट टूल्स प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे आपकी सारी चेकलिस्ट होगी, सारे जितने भी अपने को रिक्वायरमेंट्स रहती है ड्यूरिंग द ऑडिट्स, वो सारे उसमें इनकॉर्पोरेट होंगे, सारे सभी तरीके के टूल्स, वेदर इट्स थर्ड पार्टी कंफर्मेशन का लेना हो ये एनी अदर थिंग है। एंड प्रोबेबली द इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन इट एंड बहुत जल्दी शायद मेरे ख्याल से वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये थैंक यू प्रदीप जी फॉर योर सजेशन। एंड आप
जैसा कह रहे हो वैसा होगा। अदरवाइज मुझे ये लगा था कि शायद वो एक चुनावी वो था एक तरीके से। तो बाद में नहीं सर, मैं जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, हेड ऑफिस वर्किंग ऑन इट, एंड वो बहुत वेंडर से बात भी कर चुके हैं, फाइनलाइज भी कर चुके हैं चीजों को लेके, एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने पास बहुत जल्दी वो टूल्स सबको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। थैंक Very यू प्रदीप nice, सर। very nice step, Pradeep ji. Apart from that, I would like to highlight few things. देखिए, checklist develop कर रहे हैं, उन that I also heard of, and it's really a very nice step because it's a need of the hour. जैसे आपने कहा कि भाई ये सारी चीजें आ सकती हैं, ये सारी चीजें आएंगी अभी, तो वो हमें, मेरा इंस्टीट्यूट इज आवर बॉडी, वो इंस्टीट्यूट को ही हमें गाइड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे काफी सारी पब्लिकेशन भी है, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ, एक चेकलिस्ट, एक टूल डेवलप कर दिया, बट काफी सारा लिटरेचर भी है। मैं अगर बात करूं, इफ आई रिमेम्बर 2 years back I was taking one session with Sunil Talati sir. So there I found कि एक चेकलिस्ट, एक गाइडेंस नोट है, उसका हेडिंग यही है, ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज एंड ऑल। आप उसको ढूंढेंगे, यू विल फाइंड दैट। नहीं है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहां पे अगर आप वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो पूरा चेकलिस्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है बट पूरा चेकलिस्ट है। उसमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक सब कुछ दे रखा है। शुरुआत की मैं बात करूं, एंगेजमेंट लेटर से लेकर एंगेजमेंट लेटर कंफर्मेशन जो आप बात कर रहे हैं, सारे क्लॉजेस उसमें आके लास्ट तक दे रखे हैं। तो दीज काइंड ऑफ मटेरियल डू एग्जिस्ट, तो वो भी आप चीज देख सकते हैं, वो एक चेकलिस्ट देख सकते हैं आप, उससे डेफिनेटली इट विल हेल्प। और वो जो आप कह रहे हैं स्मॉल कंपनीज वगैरह, उसमें वो बनाई उस चीज के लिए है सर। Thank you, Sunil sir. And I think we are moving towards the final. One question, Akash. There is one question on chat Okay. box. Pradeep ji, no audio facility to put queries. जो Then उसके बाद, निकुंज जी का है, how a member in industry can work so that he as well as auditor will do compliance on timely manner. Definitely industry के, पर देखिए, मैं अगर बात करूं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, तो आई एम वेरी ब्लंट एंड आई एम वेरी क्लियर कि पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और कंपनी का है, राइट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन वर्क टुगेदर, राइट। जैसे कोई नए चेंजेस आए, व्हाट वी कैन डू टुगेदर कि भी यहाँ changes आए हैं, we are aware of those changes, had a discussion with your teams, with your clients, right। जैसे मान लीजिए मैं ऑडिटर हूँ, तो मैं अपने जो भी मैं ऑडिटी क्लाइंट है, राइट, मैं उनसे जाके डिस्कस करूंगा, उनको शेयर करूंगा लिटरेचर कि भैया देख ये आ रहा है, इट्स नॉट माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको असेस करो, डिस्कस करो, डिलिब्रेट करें, चीजें इवॉल्व होंगी, हम शेयर करें आपस में। एंड वन थिंग वी गाइज नीड टू रिमेम्बर स्ट्रिक्टली, हमारी सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का है। वो छोटे क्लाइंट्स पे ठीक है, हम लोग ही सारा चीज करते हैं, बट इन कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, या जहाँ पे थोड़ा सा चीज ठीक है, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिलोंग्स टू देम, हमारी खाली ऑडिट रिपोर्ट है। आई होप निकुंज आई एम एबल टू आंसर योर पॉइंट। वेरी वेल सेड सुनील जी। एंड जहां तक बात है स्मॉल कंपनीज की, वहाँ आई थिंक फाइनेंशियल्स बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक ही आ जाती। एंड वेरी वेल डिलिबरेटेड द एंटायर सेशन। बीइंग मैं आई एम नॉट एन ऑडिट गाय, बट मैंने जब सेशन अटेंड किया एंड क्लॉज बाय क्लॉज देखे, सो आई नी इट्स आई ओपनर फॉर मी एज वेल, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन को एक्चुअली ध्यान रखनी चाहिए, स्पेशली टुवर्ड्स द बोरोइंग पार्ट्स, कि वहाँ क्या क्या डिस्क्लोजर्स अपन को देखना है रिगार्डिंग दैट बैंक स्टेटमेंट, जहाँ स्टॉक स्टेटमेंट और रिटर्न्स अपन को क्लाइंट्स अपन को प्रोवाइड ही नहीं कराते कि वो स्टॉक स्टेट बैंक में क्या स्टॉक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एंड अपन जब स्टॉक स्टेटमेंट्स देखते हैं, देन फिर पता लगता है कि बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंस है चीजों को लेते हुए। एंड बट दिस इज द टाइम जहां अपन को बहुत विजिलेंट होना है, बिकॉज शेड्यूल 3 चेंजेस जो है वो दैट इज फॉर अस ओनली, क्योंकि क्लाइंट आज भी इतना नॉलेज गेन नहीं है उनके पास, और ना तो रिक्वायरमेंट है। दिस इज अप टू अस
कि अपन उसको क्लाइंट्स को अपडेट करें, प्लस अपन लोग भी अपडेट रहें। एंड मैं सुनील जी को आई वुड ओपन हार्टली थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर गिविंग गिविंग दिस इनसाइट टू एवरी दिस शेड्यूल थर्ड में जो चेंजेस हैं, कैरो में जो चेंजेस आए हैं। एंड मैं आई एम वेरी मच होपफुल कि जब जब हम CIRC लेवल पे सुनील जी को बुलाएंगे, इज अवेलेबल, एंड हमेशा Definitely. आगे भी हम ऐसे ही सेशंस करते रहे। थैंक यू सुनील सर, एंड क्लास थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ये क्लास अटेंड करी। एंड ऑल्सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को PPT चाहिए तो विल अपलोड दिस PPT ऑन आवर वेबसाइट, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सुनील जी। Thank you, everyone. Have a nice weekend. Thank you. ओके, थैंक यू।